one of the major reasons why most of our greenhouse projects are not doing well. The reason is that we don't know how to control the environment. We have not been focusing on it properly. Purely out of my experience, I am going to share some real good tips for all of you that will help you in controlling, or in fact understanding how to control the environment inside a greenhouse. As Dr. Vishal told you, and I'm very sure some of you must have attended the last webinar also, I am not a teacher, I am not a professor, I am not an agriculture, I am not a person with agriculture qualification. I am purely here because of my experience, and that is what I am going to share with you. So don't be under this impression that some scientist, some professor or somebody like that is going to interact with you. No, and simple entry agripreneur who has made his bread and butter out of agriculture, commercial agriculture since last 40 years is here to present, not present, in fact, share his experiences with you. So let's move to the topic. And Shivani, allow me to share my screen, please. Sir, you're allowed. You can share now. Is it visible to everyone now? Right. Shivani, is it visible, audible, everything okay? Yeah, also please continue. Yes, sir. Yes. Thank you. Thank you. Welcome once again, ladies and gentlemen, my dear friends, boys and girls. Everyone is welcome to the world of greenhouse environment. This is again what Dr. Vishal told you about myself. I am presently working as a Chief Technical Officer, Agriplast Protected Cultivation Private Limited. We are one of the pioneers of greenhouse technology. We are the people who technically brought greenhouse technology into the country. The company is based in Tamil Nadu and I am based in Delhi. Dr. Vishal told you that I am based in Tamil Nadu, but no, I am based in Delhi. But our company is based in Tamil Nadu, the place known as Hosur. So most of the time, people ask me a very common question, and the question is, what can make us a successful greenhouse grower? ये एक बहुत कॉमन सा सवाल है. मैं लैंग्वेज वैसे ही जैसे लास्ट में वेबिनार में मैंने रखा था, इट विल बी मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड. सो लोग मेरे से आमतौर पे पूछते रहते हैं, दे कीप ऑन आस्किंग मी कि व्हाट कैन मेक अस अ सक्सेसफुल ग्रीन हाउस ग्रोवर. और माय रिप्लाई टू ऑल दोस पीपल इज very simple. And reply is, for being a successful greenhouse grower, you need to do 5 perfect actions. And if you fail on one, the energy you have spent on rest of the 4 is going to be waste. एक ग्रीन हाउस चलाने के लिए 4-5 चीजों पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और इन 5 के 5 पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा. अगर आपने 5 में एक पे थोड़ा सा ढीलापन लगा दिया तो बाकी जो एनर्जी आपने 4 चीजों पे लगाई है वो वेस्ट हो जाएगी. So this is very, very important. You cannot take even one point casually. वो एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उन पे आपको इक्वली फोकस करना पड़ेगा, उनको आपको इक्वली फॉलो करना पड़ेगा, उनको आपको इक्वली मॉनिटर करना पड़ेगा. इन 4-5 चीजों में अगर आप एक चीज पे भी आपका फोकस थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो बाकी की जो एनर्जी है, बाकी का जो टाइम है, जो आपने बाकी के 4 चीजों पे लगाया है, वो सब बेकार हो जाएगा. You just cannot be casual on one thing and then expect results to happen. That does not happen. Now, fundamental reason for poor performance of our greenhouse industry, everyone knows it. Our greenhouse industry is not doing very well. I know it. It's not doing very well. And what is the fundamental reason for that? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक simple है. And the reason is, fundamentally, we don't know the difference between open cultivation
एंड ग्रीन हाउस कल्टिवेशन। इन दोनों कल्टिवेशन में क्या फर्क है ये हमको मालूम नहीं है। हम वही स्ट्रैटेजी उसी तरीके से ग्रीन हाउस के अंदर कल्टिवेशन करते हैं जैसे हम ओपन में बाहर कल्टिवेशन करते हैं, जबकि ये दोनों चीजें बिल्कुल डिफरेंट है। ये फंडामेंटल रीजन है। इसलिए जो लोग, the people who want to get into the greenhouse cultivation are supposed to know cultivation strictly relevant to greenhouse. And when we talk about the cultivation relevant to greenhouse, it's slightly different than the open. Open में जैसे आप करते थे वैसा greenhouse के अंदर में नहीं होता है, उसको आपको सीखना पड़ेगा, and that is what we are trying to do today. देखिए एक कॉमन सा चीज क्वेश्चन है, what does we need a plant to grow nicely? एक अच्छा प्लांट ग्रो होने के लिए what are its requirements? What does it? It needs good food, it needs good water, it needs good environment. तीन चीजों की जरूरत पड़ती है एक प्लांट को ग्रो होने में, and those are good food, good water and good environment. And when you are growing a plant, जब आप एक प्लांट को बाहर ओपन फील्ड में ग्रो करते हैं, who will provide good food to the plant? कौन प्लांट को गुड फूड देगा? It is grower, it is you and me जो प्लांट को प्रॉपर फूड देगा. Then comes the second thing, good water. Who will provide this good water to the plant? Again, grower, you and me has to provide this good water to the plant. And then the third thing is good environment. Who is providing this environment? बाहर एक प्लांट को environment कौन देता है? ये नेचर देता है, एक कुदरत देती है. दो चीजें, ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, गुड फूड, गुड वाटर, गुड एनवायरनमेंट. Good food you can provide, good water you provide when you are growing a plant outside, and good environment is provided by the nature. ये ओपन कल्टीवेशन की बात है. अब हम इसी प्लांट को उठा के ग्रीन हाउस के अंदर में अगर डालते हैं, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? अब चीजों की जो रिक्वायरमेंट है प्लांट की वो सेम है. इट नीड्स गुड फूड, इट नीड्स गुड वाटर, इट नीड्स गुड एनवायरनमेंट. बट हियर द डिफरेंस इज गुड फूड हु विल प्रोवाइड इट? ग्रोवर, you and me. Good water, who will provide? Grower, you and me. And now good environment. You have taken this plant away from the nature. आपने इसको बाहर से अंदर लेके आए हैं, आपने इसको नेचर से दूर कर दिया, और अब जो नेचर इसको बाहर दे रहा था, who will provide that environment to the plant? It is purely and purely grower. यहाँ पे जब आप इस प्लांट को एक ग्रीन हाउस के अंदर लेके जाते हैं, it is the job of a grower to provide good environment to the plant. ये आपको समझ लेना चाहिए. बाहर में जो एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट नेचर देती है, अंदर में जो एनवायरनमेंट देना है along with good food and good water, it is the grower who has to provide good environment to the plant. And greenhouse environment management, this is what we intend to learn today. यही मेरे आज की इस वेबिनार का मुद्दा है कि यही चीज हम सीखना चाहते हैं कि अंदर एक ग्रीन हाउस के अंदर में जब हम प्लांट को लेके जाते हैं, वहां पे जो एनवायरनमेंट है वो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. दिस इज द पॉइंट फॉर टुडेज वेबिनार. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. व्हाट डज ग्रीन हाउस एनवायरनमेंट कंप्राइज ऑफ? ग्रीन हाउस एनवायरनमेंट में होता क्या है? इट कंटेन्स, जो मैंने 5 चीजें आपको बोली, इरिगेशन, पानी देना, लाइट का होना, प्रॉपर टेम्परेचर का होना, ह्यूमिडिटी होना, और लीफ टेम्परेचर. प्लांट का क्या टेम्परेचर है? एक तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, इसका ध्यान रखना पड़ता है. लीफ का क्या टेम्परेचर है, उसका ध्यान रखना पड़ता है. ह्यूमिडिटी और इरिगेशन और लाइट, ये सब चीजें जब हम टुगेदर व्हेन वी टेक ऑल दीज थिंग्स, दीज क्रिएट द एनवायरनमेंट. ये सब चीजें प्रॉपर होनी चाहिए एक प्लांट को अच्छे से ग्रो करने के लिए. मैं इरिगेशन और लाइट पे ज्यादा नहीं, इस वेबिनार में ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स है जिन पे एक सेपरेट वेबिनार हो सकता है. इरिगेशन पे एक कंप्लीट वेबिनार होना चाहिए, लाइट पे एक सेपरेट वेबिनार होना चाहिए. इसलिए मैं ज्यादा इरिगेशन और लाइट पे नहीं बोलूंगा, लेकिन बाकी की चीजें जो कंप्राइज करती हैं फॉर गुड हेल्दी एनवायरनमेंट, दोज वी विल डिस्कस प्रॉपरली ड्यूरिंग दिस प्रेजेंटेशन. तो थोड़ा सा प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में, जब आप ओपनली एक प्लांट को देखते हैं, जस्ट अ मिनट, जब एक प्लांट को आप देखते हैं तो प्लांट कंप्राइजेज ऑफ, प्लांट में आपको क्या दिखता है? रूट्स दिखते हैं, फ्रूट्स दिखते हैं, फ्लावर दिखते हैं, लीव्स दिखते हैं, स्टेम दिखता है.
a plant, when we look at the plant, it comprises of roots, fruits, flowers, leaves and stem. लेकिन other than that, इसमें leaves के ऊपर में छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं. ये आपको दिखेंगे नहीं, these are not visible to you. ग्रीन हाउस ग्रोवर को ये दिखेंगे नहीं, लेकिन इनके बारे में एक ग्रीन हाउस ग्रोवर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. ये जो स्टोमेटास होते हैं ये टाइम के साथ में खुलते हैं और बंद होते हैं, टाइम के साथ में खुलते हैं और बंद होते हैं. और जब ये खुलते हैं तो पानी को बाहर फेंकते हैं. When they open, they push water in the form of water vapor in the atmosphere. And while they close, जैसे वो बंद हो जाते हैं, they take carbon dioxide from air और वो अंदर अपने ले लेते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट का फूड है. तो ये स्टोमेटास आपको दिखते नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का, जो एक ग्रीन हाउस ग्रोवर को जानना चाहिए. इनका काम क्या होता है? ये खुलते हैं टाइम के साथ में, आगे मैं बताऊंगा कब खुलते हैं कब बंद होते हैं. उसके साथ में कभी खुलते हैं कब बंद होते रहते हैं रेगुलरली. और जब ये खुलते हैं तो प्लांट के अंदर के पानी को, जितना भी एक्सेस पानी होता है उसको हवा में फेंकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. एंड व्हाइल क्लोजिंग, और फिर बंद हो जाते हैं. व्हाइल क्लोजिंग ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेते हैं प्लांट के पास में. ये प्लांट फिजियोलॉजी है कि प्लांट कैसे ग्रो होता है. और इन प्लांट की ग्रोथ में 3 प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व: प्लांट फोटोसिंथेसिस, प्लांट रेस्पिरेशन, प्लांट ट्रांसपिरेशन. ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है. 12th 9th से 10th 12th की जो साइंस की बुक्स है उसमें हमने ये चीजें पढ़ी होती है. These all we have read during that 9th and 10th class, लेकिन possibly we have not focused, या शायद याद नहीं है. लेकिन ये 3 processes are responsible for the growth of a plant. आप प्लांट को कहीं भी उगाइए, घर में उगाइए, कमरे में उगाइए, बालकनी में उगाइए, बाग में उगाइए, छत पे उगाइए, ओपन फील्ड में उगाइए, ग्रीन हाउस के अंदर में उगाइए, एनएफटी में उगाइए, नॉन एनएफटी में उगाइए, सॉइल में उगाइए, सॉइललेस में उगाइए. ये 3 प्रोसेसेस का होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये 3 प्रोसेसेस नहीं होंगे प्लांट, तो प्लांट नहीं चलेगा. आपको ऐसा एनवायरनमेंट देना पड़ेगा प्लांट को, सो दैट दीज 3 प्रोसेसेस टेक प्लेस. तो थोड़ा सा जानिए इन तीनों प्रोसेसेस के बारे में. प्लांट फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इन प्लांट फोटोसिंथेसिस इज, ये लीव्स में होता है और स्टेम्स में होता है. इसमें स्टोमेटास प्लांट जो होता है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ये हवा से, आप इतना याद रखिए कि ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, पानी को फेंकता है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है. और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इससे लिया, ये कार्बन डाइऑक्साइड पान जो प्लांट के अंदर में पानी होता है उसमें मिक्स हो जाता है और शुगर फॉर्म करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है. इस प्रोसेस को होने के लिए बराबर लाइट और क्लोरोफिल चाहिए. अगर लाइट आपके ग्रीन हाउस में नहीं है तो ये प्रोसेस नहीं होगा, और अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो आपका प्लांट ग्रो नहीं करेगा. दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट. दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट. इतना समझ लीजिए, अच्छे से पढ़िए इसको, इंटरनेट से या साइंस की 12th स्टैंडर्ड की बुक से पढ़िए. वेरी सिंपल, उसमें सिंपल तरीके से पढ़िए इसको. एंड रिमेंबर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल शुगर बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं. ऑक्सीजन प्लांट हमारे लिए रिलीज करते हैं, शुगर वो ब्रेक डाउन करते हैं, उससे अपना खाना, अपनी एनर्जी वो निकालते हैं. क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्लांट्स के अंदर में होता है. इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग लाइट. फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, आगे की स्लाइड्स में मैं इन सब चीजों को बहुत सिंप्लीफाई करके बताऊंगा. दूसरा प्रोसेस जो है प्लांट रेस्पिरेशन. प्लांट जैसे इंसान सांस लेता है वैसे प्लांट भी सांस लेते हैं. तो प्लांट रेस्पिरेशन में क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जो प्लांट बगैर लाइट के भी कर लेता है, मतलब रात को भी प्लांट रेस्पिरेशन होता है. प्लांट रेस्पिरेशन में प्लांट ने जो अपना खाना बनाया होता है उसको ब्रेक करता है, और उसको अपने उसमें से एनर्जी निकाल के खा जाता है, उसका एनर्जी को अपने यहाँ यूज करता है. इसके लिए लाइट का होना जरूरी नहीं है. ये प्लांट रेस्पिरेशन है. और तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर अ ग्रीन हाउस ग्रोवर इज प्लांट ट्रांसपायरेशन. What does this mean? The process of absorption of water through the roots of plant and subsequent loss of water to atmosphere through the stomata of plant is transpiration. देखिए, कोई भी प्लांट जो होता है वो पानी लेता है रूट्स के से,
और उसके रूट पानी लेते हैं, उस पानी को वो यूज करता है, और जितना भी एक्सेस पानी उसके पास में होता है वो थ्रू स्टोमोटास ये हवा में फेंकता है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, 24 घंटे का ये प्रोसेस है। और जितना सही तरीके से ये प्रोसेस चलेगा उतना सही एक प्लांट ग्रो करेगा। If this process gets disturbed, if this process gets disturbed, प्लांट ट्रांसपायरेशन रुक जाएगा और प्लांट का ग्रोथ रुक जाएगा और प्लांट विल डाई। एंड इसको रुकने का, इसको डिस्टर्ब होने का जो मेन रीजन है, दैट इज द एनवायरमेंट। खास करके ग्रीन हाउस में जब हम उसको एनवायरमेंट उस तरीके का नहीं दे पाते हैं तो प्लांट्स डोंट ट्रांसपायर। व्हेन दे डोंट ट्रांसपायर दे विल नॉट ग्रो, एंड व्हेन दे विल नॉट ग्रो दे आर बाउंड टू डाई। सो ये जो प्लांट ट्रांसपायरेशन वाला प्रोसेस है, इसको मैं आगे जाके 3-4 जगहों पे अच्छे से सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊंगा, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज एंड प्लीज इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करके ही आप ग्रीन हाउस एनवायरनमेंट को समझ सकते हो या ग्रीन हाउस एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हो। Then they say stomatas occupy 1% of leaf area but transfer 90% of water taken up by the plant. इस स्टेटमेंट को भी अच्छे से रजिस्टर करिए, रजिस्टर इट इन योर माइंड कि स्टोमोटा जो होते हैं वो प्लांट का सिर्फ 1% एरिया कवर करते हैं, लेकिन 90% पानी जो प्लांट लेता है उसको वो ट्रांसफर कर देते हैं हवा में। इसका मतलब ये है, अगर आपके प्लांट ने पूरे दिन में 100 ग्राम पानी लिया है, वो सिर्फ इसमें 10 ग्राम यूज करता है, 90 ग्राम वो थ्रू स्टोमोटा और थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन एनवायरनमेंट में देता है, वो हवा में डालता है। सच इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोसेस कि 90% पानी इसने सिर्फ रूट ने लेना है और एनवायरनमेंट में थ्रू स्टोमोटास इसको फेंकना है। और ये प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस है। नाउ सी द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोसेस, see the importance of this process in the way that 90% of the water that a plant takes is transferred, it's transferred in the atmosphere। तो कितना इंपॉर्टेंट है इस ट्रांसपायरेशन रेट को मेंटेन करना, कितना इंपॉर्टेंट, क्योंकि 90% पानी इसने ट्रांसफर करना है। ये एक कुदरत का निजाम है, ये भगवान का एक सिस्टम है जिसकी वजह से जितना भी वो पानी लेता है उसका 90% इसको हवा में फेंकना है, 90% इसको थ्रू स्टोमोटा हवा में फेंकना है। और ये जो प्रोसेस है इसमें अगर एनवायरनमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो ये प्रोसेस विल नॉट टेक प्लेस, एंड द मोमेंट दिस प्रोसेस स्टॉप्स, स्टोमोटास बंद हो जाते हैं, वो फिर खुलते हैं नहीं और विल्टिंग आ जाती है, प्लांट आपके मर जाते हैं। इस प्रोसेस को हमको कंटिन्यू रखना है बाय प्रोवाइडिंग गुड हेल्दी एनवायरनमेंट टू द प्लांट। देखिए पानी और प्लांट का जोड़ देखिए आपस में क्या है, एक बार फिर मैं आपको बताता हूं। वाटर के साथ में जो नीचे वाला पार्ट है, रूट वाला जो पार्ट है, इट होल्ड्स 5% ऑफ द वाटर। जितना पानी प्लांट लेता है उसका 5% ये रूट्स के पास में रखता है, अनदर 5% इट कीप्स, जो अपर पार्ट है इसका, जो एरियल पार्ट होता है प्लांट का, ऊपर वाला जो जमीन से ऊपर का पार्ट होता है, वो 5% पानी होल्ड करता है, और 90% of the water goes into atmosphere. 90% of the water goes into atmosphere, and it is the job of a greenhouse grower to ensure that this actually happens with his plant. उसके plant 90% पानी environment में बेच रहे हैं, वो ट्रांसफर कर रहे हैं, और ये ट्रांसफर करने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट प्लांट को देना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, and that's what we are trying to do today. जाएंगे, जैसे मैंने आपको बोला लाइट और इरिगेशन आर पार्ट ऑफ इट, लेकिन आज मैं डिटेल में उनके बारे में नहीं बोलूंगा, दे आर वेरी वास्ट टॉपिक्स और एक एक वेबिनार उन पे होना चाहिए। अदर देन दैट, क्या ग्रीन हाउस के एनवायरनमेंट में होना चाहिए अंदर? सफिशिएंट फ्रेश एयर। फर्स्ट थिंग जो आपको इंश्योर करनी है कि आपके ग्रीन हाउस में अच्छी खासी फ्रेश हवा नहीं, फ्रेश हवा हमेशा आपके फ्रेश एयर आपके ग्रीन हाउस के अंदर होनी चाहिए। जब फ्रेश हवा अंदर आ जाएगी तभी जाके प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, then only your plants will get carbon dioxide. अगर फ्रेश हवा नहीं मिलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड won't be available to the plants. Why? I will tell you in my future slide. Sufficient wind velocity, एक अच्छी खासी velocity भी
2 माइल्स पर आवर की वेलोसिटी भी हवा के अंदर होनी चाहिए, दैट हेल्प्स इन ट्रांसपायरेशन। आगे वाले स्लाइड्स में एक्सप्लेन करूंगा। देन क्वालिटी वाटर, यस गुड क्वालिटी वाटर हैज टू बी देयर। अनाप शनाप पानी आपने प्लांट को दिया तो प्लांट के दाएं बाएं पानी रखना, या प्लांट जिस मिट्टी में है या जिस एनवायरनमेंट में वहां पे पानी रखना डज नॉट मीन प्लांट ने वो पानी ले लिया। पानी प्लांट वही पानी लेता है जो उसके लेने के काबिल हो, जिसकी क्वालिटी अच्छी हो। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि गुड क्वालिटी वाटर इज नीडेड एंड एडिक्वेट लाइट, एज आई टोल्ड यू, फॉर फोटोसिंथेसिस। क्योंकि लाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट ग्रो नहीं करेंगे, स्टोमेटा बंद हो जाएगी, ट्रांसपायरेशन रुक जाएगा एंड प्लांट्स विल विल्ट। तो ये चीजें जो है ये ग्रीन हाउस एनवायरनमेंट बनाती हैं। लेट्स अंडरस्टैंड अनदर थिंग, जस्ट अ मिनट। कि एक ग्रीन हाउस, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जब ग्रीन हाउस को प्रमोट किया गया तो इट वाज प्रमोटेड लाइक ए मैजिकल बॉक्स। लोगों को नॉर्मली ये बोला गया कि एक मैजिकल बॉक्स है, आप इसमें कुछ भी करिए, बीज डाल दीजिए, खाद डाल दीजिए, पानी दे दीजिए, इसमें कुछ भी हो जाता है। इट वाज प्रमोटेड एज एन मैजिकल बॉक्स, बट दैट इज नॉट ट्रू। दैट इज नॉट ट्रू। कोई जादू का पिटारा नहीं है ग्रीन हाउस, ये कोई जादू का पिटारा नहीं है। देन इफ इट इज नॉट अ मैजिकल बॉक्स, then what it is? Just a minute. Then what it is? Greenhouse, if greenhouse isn't technology basic, greenhouse isn't technology, and if it isn't technology, then we need to know the principle of this technology. अगर ग्रीन हाउस एक टेक्नोलॉजी है तो ये किस प्रिंसिपल पे चलती है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, वो हमको समझना बहुत जरूरी है। जब हमको वो बेसिक प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा, देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड द हाउ टू कंट्रोल द एनवायरनमेंट। एक ग्रीन हाउस को समझ लीजिए, ये ग्रीन हाउस है, नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस है, जो एक लोहे का या किसी और चीज का स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर में एक खास तरीके की शीट लगाई जाती है, पीवीसी की शीट लगाई जाती है। साइड में इसके वेंट होते हैं और टॉप पे भी वेंट होते हैं। वेंट का मतलब है यहाँ पे ओपन जगह है जिसके नीचे एक नेट लगी होती है ताकि कोई कीड़ा वीड़ा ना घुसे, और ऊपर में भी एक वेंट होता है, इसको हम टॉप वेंट बोलते हैं, इसको हम साइड वेंट बोलते हैं। वो नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल, होता क्या है ग्रीन हाउस में, यहाँ जो साइड के वेंट होते हैं, यहाँ से द फ्रेश एयर विल कम इन, यहाँ से फ्रेश एयर को अंदर जाना है, यहाँ से ये साइड का वेंट है, यहाँ से फ्रेश एयर को अंदर जाना है। वो फ्रेश एयर प्लांट्स यूज करेंगे, जैसे वो यूज करेंगे उसके बाद में वो हवा गर्म हो जाएगी, वो हल्की हो जाएगी, वो ऊपर की ओर जाएगी और ऊपर के वेंट से ये बाहर जाएगी। This is basic mechanism how a greenhouse works. Air enters from the sides of the side vents. It's used by the plants. It gets hotter, it gets lighter, moves up, and from up there are top vents, or on top vents के through में this air, this stale air will move out. ये continuous process है, हवा ने बार बार आना है और बार बार उसने ऊपर से बाहर निकलना है। तो ये एक बेसिक मैकेनिज्म है ग्रीन हाउस का, हवा का बार बार अंदर आना। बार बार को याद रखिएगा इस वर्ड को, बार बार। इट्स नॉट वन टाइम, इट इजंट कंटिन्यूअस, एयर एक्सचेंज हैज टू बी देयर, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बार बार उस हवा का अंदर आना और फिर उसी हवा का आफ्टर इट इज यूज्ड बाय द प्लांट उस हवा का बाहर जाना इज बेसिकली द बेसिक मैकेनिज्म। फिर एक बार मैं आपको बताऊं कि ये एक ग्रीन हाउस कंसिडर करिए, ये ग्रीन हाउस कंसिडर करिए, साइड वेंट्स हैं, साइड से एयर अंदर आती है, और अब ये एयर जो ये हमारा ग्रीन हाउस है, जो ये ग्रीन हाउस है, इसके चारों ओर हवा है, बाहर हवा है, इसके बाहर हवा है, और ग्रीन हाउस के अंदर भी हवा। ग्रीन हाउस कभी खाली नहीं होता है। अगर ग्रीन हाउस में कोई प्लांट नहीं है, देयर आर नो प्लांट इनसाइड द ग्रीन हाउस, डजंट मीन आवर ग्रीन हाउस इज एम्प्टी। ग्रीन हाउस इज ऑलवेज फिल्ड विद एयर, और उसके ग्रीन हाउस इज आल्सो सराउंडेड बाय द एयर। नाउ वी हैव टू इंश्योर जो हवा यहाँ पे है, जो हवा यहाँ पे है, वो जैसे यूज हो गई वो बाहर चली गई, और ये जो बाहर वाली हवा है, दिस आउटसाइड एयर हैज टू कम इन, दिस आउटसाइड एयर हैज टू कम इन। और कभी ये मत सोचिए कि हमने वेंट खोल दिया ये हवा अंदर आ जाएगी, नो, देयर इज एन प्रिंसिपल इन्वॉल्व, हाउ winds will flow in, how air will flow in, उसका एक प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को आपको समझने की जरूरत है।
ये एक चिमनी इफेक्ट रहता है, एक चिमनी का इफेक्ट रहता है। जैसे चिमनी में भी नीचे से हवा देते हैं और कंटिन्यूसली वो नीचे से हवा लेता है और अंदर का जो धुआं होता है उसको वो ऊपर फेंकता है, एक ड्राफ्ट बन जाता है। क्यों चिमनी इतनी लंबी की जाती है? एक ड्राफ्ट क्रिएट किया जाता है ताकि नीचे की हवा ऊपर से निकाल दी जाए। इसी सेम प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू ए ग्रीन हाउस। यहां पर भी इसको ये जो दिया गया है, ये ड्राफ्ट बनाने के लिए ये पोजीशन दी गई है, ये शेप दी गई है ताकि, और हाइट इसकी अच्छी दी जाती है, कैलकुलेशंस उसके लिए होती हैं और हाइट उसके हिसाब से दी जाती है, सो दैट यू क्रिएट दिस ड्राफ्ट टाइप ऑफ इन सिचुएशन, देन ओनली द एयर विल मूव आउट, अदरवाइज इट विल स्टे, अदरवाइज वो हवा बाहर नहीं जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि हवा जो होती है, हवा की जो होती है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। हवा की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, प्रेशर होता है एयर का बहुत ज्यादा। इस टाइम अगर आप यकीन करेंगे कि आप लोगों के सामने जो टेबल हैं उन पे एयर का प्रेशर है, जितना आप मान लीजिए ऑलमोस्ट 10 मारुति गाड़ियां अगर टेबल पे खड़ी करेंगे, जितना उनका प्रेशर आ जाएगा उतना ही प्रेशर एयर का इस टाइम आपके टेबल पे, जो टेबल आपके सामने रखी हुई है। लेकिन आप फिर पूछेंगे कि ये हमारी टेबल टूटती क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं टूटती है कि नीचे से भी उतना ही एयर का प्रेशर है, दाएं से भी उतना ही एयर का प्रेशर है, बाएं से भी उतना ही एयर का प्रेशर है। दैट इज व्हाई इट इज स्टेइंग स्टर्डी। बट एयर का बहुत ज्यादा प्रेशर है। आपने देखा होगा जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते हैं तो फुल थ्रस्ट पे इंजन्स काम करते हैं, क्योंकि जो उनको वो एयर का जो प्रेशर है उसको ब्रेक करना है, देन ओनली इट विल मूव। सेम वे जो हमारे ग्रीन हाउसेज हैं उनके ऊपर भी एयर का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। उस प्रेशर को हमको घटाना होता है, जब वो घटेगा तभी जाके उसकी जगह लेने के लिए और कोई हवा अंदर आ सकती है। सेकंड थिंग इज, इसका एक कॉमन जो एग्जांपल है वो एक कार का टायर है। इट एक्सर्ट्स, जब हम उसमें हवा भरते हैं फिर प्रेशर से चेक करते हैं कितना प्रेशर उसमें आ गया, उसका मतलब ही ये है कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। फिर एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, हवा जगह लेता है, हमको दिखती है जगह खाली है, बट दैट्स नॉट ट्रू। ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जैसे इस टायर के अंदर जब हम हवा भरते हैं और गाड़ी में लगाते हैं तो फिर गाड़ी इसी प्रेशर पे चलती है। अगर हवा जगह नहीं लेता, स्पेस नहीं लेता, तो हर ट्यूब फ्लैट हो जाता है, एकदम से फ्लैट हो जाता है। बट दैट डज नॉट हैपन बिकॉज इट ऑक्यूपाइज स्पेस। तो आपके भी ग्रीन हाउसेस में अगर आपको खाली वो दिखते हैं, वो खाली नहीं है, नहीं है, उसके अंदर हवा है, हवा है। और नई हवा भरने के लिए आपको उसमें से जो पुरानी हवा है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। अगर आपके ग्रीन हाउस आपको खाली दिखते हैं, वो खाली नहीं है, उनके अंदर एयर है। उस एयर को अगर आपने निकालना है, बाहर निकालना ही जरूरी है, क्योंकि फ्रेश एयर हमको बार बार अंदर लाना है, वो उसको हमको बाहर निकालना पड़ेगा। जब हम उसको बाहर निकालेंगे तभी जाके फ्रेश एयर अंदर आएगी। एंड थर्ड इज एयर हैज वेट। एयर हैज वेट सिंपल, आप एक खाली टायर को लीजिए, उसका वजन करिए, फिर उसमें हवा भरिए, फिर उसका फिर से वजन करिए, आपको पता लगेगा कि हवा में वजन भी है, हवा का एक वजन भी है। ये जो खाली चीजें हमको दिखती हैं वो खाली नहीं होती हैं, उनमें एयर होती है, और एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड एयर हैज वेट। ये तीन चीजों को आप जान लीजिए। हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे ग्रीन हाउस ग्रोवर्स है वो पर साइड के वेंट खोलते हैं और समझते हैं कि हवा अंदर आ गई, हवा अंदर आ गई। देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, आपको इधर एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। ये एक बॉटल है, सिंपल बॉटल है, और इसके ऊपर में एक बलून हमने लगाया है। सिंपल एक बलून लगा है इसके अंदर में। अब हम इस बलून को अगर हवा भरेंगे इसमें, मैं फुल प्रेशर लगा रहा, लेकिन हवा भरी नहीं जा रही है। व्हाई डज इट हैपन? इट हैपन्स बिकॉज कि इस बोतल के अंदर में भी हवा है और उसको बाहर निकलने की जगह नहीं है, जगह नहीं है। और जब तक वो बाहर नहीं निकलेगी फ्रेश एयर अंदर नहीं आएगी। मैं और कोशिश करता हूं, नो इट्स नॉट पॉसिबल। आप और हवा नहीं डाल सकते क्योंकि अंदर उसके हवा है जो आपको दिखती नहीं है, जो आपको दिखती नहीं है। इसलिए ये समझना कि मैंने वेंट खोल दिए और बाहर की हवा अंदर आ गई, इट इज नॉट ट्रू, इट्स नॉट ट्रू। एयर के चलने के, एयर के मूवमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको हमको समझना चाहिए। अब इसी बॉटल में मैंने यहाँ पे एक छोटा सा छेद किया हुआ है, छोटा सा छेद है। अब मैंने अभी जब मैं कर रहा था तो इस छेद को बंद रखा था, नो एयर, क्योंकि बाहर नहीं निकल रहा था। अब मैं अपनी उंगली को हटाता हूं और इसमें हवा भरता हूं,
देखिए व्हाट हैपेंड, वहां से अंदर का जो एयर प्रेशर था वो घट गया, वो बाहर निकला, अभी जाके वो गुब्बारा फूल पड़ा और नई हवा अंदर चली गई। तो पहली बात ये समझ लीजिए, जब तक पुरानी हवा नहीं जाएगी तब तक नई हवा नहीं घुसेगी। तुझे मैंने बोला। प्लीज म्यूट योर माइक्स प्लीज। ये तब तक हवा अंदर नहीं जाएगी जब तक आपके अंदर जो पहले वाली हवा है उसका प्रेशर नहीं घटेगा, उसको बाहर मिलने की जगह नहीं मिलेगी। Now I will tell you something very typical and very beautiful to understand about greenhouse technology. क्योंकि नॉर्मली हम सोचते हैं कि ग्रीन हाउस के पर्दे खोल दिया, हवा अंदर आ गई या हवा निकल गई। अब मैं एक और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, एक और एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। देखिए, नाउ इमेजिन हमने इसमें हवा भर दी, क्योंकि नीचे मैंने उस छेद पे उंगली नहीं रखी थी, वहां से हवा निकल गई और जैसे हवा अंदर चली गई मैंने उंगली वहां पे रखी और हवा अब अंदर है इसके। नाउ इमेजिन ये बलून है लेकिन ये ओपन है, ऊपर से ओपन है, स्टिल एयर इज नॉट कमिंग आउट। इस चीज को अच्छे से देख लीजिए, ये ओपन है, हवा जो हमने भरी और मैंने बाद में उंगली रखी, अब जितनी हवा इसके अंदर है, जितना प्रेशर इसके बलून के अंदर है, उतना ही सेम प्रेशर इसके अंदर है, बॉटल के अंदर है। इसलिए कोई डिफरेंशियल नहीं है। जब तक एयर डिफरेंशियल नहीं होगा तब तक हवा आगे पीछे नहीं जाएगी। एंड इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट टॉप इज ओपन, ये टॉप ओपन है बट एयर इज नॉट कमिंग आउट। फिर से मैं आपको दिखाता हूं, एयर इज नॉट कमिंग आउट, ये टॉप ओपन है और जैसे मैं उंगली हटाऊंगा ये हवा निकल जाएगी। ये देखिए, उंगली मैंने हटा दी, हवा क्यों? क्योंकि अंदर का जो प्रेशर है वो घट गया और तभी जाके ये हवा निकल गई। एयर का डिफरेंशियल पैदा हो गया, दो जोन बन गए एयर के, एक हाई प्रेशर का और एक लो प्रेशर का। जब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं करोगे कि मेरे ग्रीन हाउस का जो अंदर का एयर प्रेशर है वो कम है, तभी जाके जो बाहर की हवा है, जो बाहर का हाई प्रेशर एरिया है, वहां से हवा चलेगी। अदरवाइज आप वेंट खोलेंगे भी, स्टिल एयर विल नॉट मूव इफ यू विल नॉट क्रिएट डिफरेंशियल। वंस अगेन मैं दिखाता हूं, फिर से मैंने उंगली रख के इसमें हवा रखी और अब ये देखिए, होप दिस इज विजिबल टू यू। मैं पेंसिल डाल रहा हूं इसके अंदर में, ओपन है, एयर इज नॉट कमिंग आउट, एयर इज नॉट कमिंग, इट विल नॉट कम, क्योंकि डिफरेंशियल नहीं है। दो इसके अंदर की हवा और बोतल के अंदर की हवा दोनों का प्रेशर बराबर है, इसलिए हवा का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। जब तक ये घटेगा बढ़ेगा नहीं, दोनों में डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, तब तक एयर का मूवमेंट नहीं होएगा, एंड हाउ टू डू इट इन अ ग्रीन हाउस आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे। They say it's all science that air moves from an area of high pressure to an area of low pressure. आप बहुत बार देखते हैं वो साइक्लोन आने वाला है, ये मतलब रेडियो टीवी पे आप देखेंगे, बोलते हैं कि एक डिप्रेशन क्रिएट हो गया, एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया और वहां हवा चलने लगी। जैसे लो प्रेशर एरिया हो गया तो हाई प्रेशर एरिया से विंड्स विल स्टार्ट ब्लोइंग टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया। ऐसे इसको समझ लीजिए कि हमारे पास में आप मान लीजिए एक हाई प्रेशर एरिया है, ये छोटे छोटे ब्लैक डॉट जो आप देख रहे हैं, दीज आर एयर मॉलिक्यूल्स। अब एक पर्टिकुलर पॉकेट हमारे पास में जिसमें बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स हैं, सो एयर प्रेशर इज हाई देयर, और एक हमारे पास में दूसरा एरिया है जहां पे लो प्रेशर है, these black dots which are lesser in number, means this is a low pressure area. Now what will happen in this case? The air will move from high pressure area to low pressure area. ये हाई प्रेशर एरिया है, यहां से विंड आएगी और लो प्रेशर एरिया में जाएगी। इसलिए अगर आपको ग्रीन हाउस के अंदर में इंश्योर करना है, मेरे को फ्रेश एयर अंदर लेके आना है, योर एयर प्रेशर इनसाइड द ग्रीन हाउस शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज बी लोअर देन द एयर प्रेशर दैट इज आउटसाइड द ग्रीन हाउस। अगर वो डिफरेंशियल वहां पे नहीं होगा तो बाहर की हवा अंदर नहीं आएगी। वो डिफरेंशियल कैसे क्रिएट करना चाहिए, दैट आई विल टेल यू, but at least for the time being till this slide, you need to keep in mind that air only flows from an area of high pressure to an area of low pressure,
And if we want fresh air to come inside my greenhouse, the air pressure inside my greenhouse should always be lesser than the air pressure that is outside the greenhouse. And how to create that low pressure area inside the greenhouse, that is what we are going to learn today. अभी तक जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको एयर प्रेशर का प्लांट पे क्या असर पड़ता है ये नहीं बता रहा हूं. मैं आपको एयर प्रेशर का सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हाउ एयर मूव्स, सिर्फ हाउ एयर मूव्स ये समझना बहुत जरूरी है पहले. फिर उसमें उसका क्या असर पड़ता है प्लांट्स के ऊपर में, वो नेक्स्ट उसमें हम आ जाएंगे, आगे के स्लाइड्स में आ जाएंगे. बट टिल दिस टाइम just understand how air moves from an high pressure area to an low pressure area. And air होता क्या है, what is air comprised of, air की क्या properties है, इसको समझना. ये अर्थ है हमारे लिए, एक सिंपल चीज है, ये अर्थ है. चारों ओर अर्थ के आपको हवा मिलती है, चारों ओर एक एटमॉस्फेयर है, और जैसे वो एटमॉस्फेयर एयर का खत्म हो जाता है तो वी गेट इनटू दिस स्पेस जहां पे हवा, एयर का प्रेशर नहीं होता है, वहां पे हवा नहीं होती है. इसीलिए जब चांद पे लोग जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, दे फ्लोट, वो फ्लोट करते हैं, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल पुल नहीं है, एयर नहीं है वहां पे, तो वहां पे कोई एयर प्रेशर नहीं रहता है. अब जैसे ये हमारी अर्थ है, इसके आसपास में हवा है, हवा के भी छोटे छोटे कण होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स. जितना वो हवा जमीन के करीब आती है उतनी उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. जितनी वो जमीन के पास होते हैं तो उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है, साथ चिपक जाते हैं. इसलिए जब आप जमीन के करीब होंगे तो एयर प्रेशर हाई होता है, और जितना आप जमीन से दूर जाओगे तो उनकी डेंसिटी कम होती है. एयर मॉलिक्यूल्स की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, फैल जाते हैं. जैसे वो फैल जाते हैं तो वो जो प्रेशर डाल देते हैं वो कम हो जाता है. मतलब अगर आप जमीन पे खड़े हैं तो एयर प्रेशर हाई होगा, अगर आप पहाड़ पे खड़े हैं तो क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो एयर प्रेशर वहां पे कम होगा. ये दिस इज द फर्स्ट पॉइंट यू शुड रिमेंबर, दैट डेंसिटी, एयर प्रेशर क्लोजर टू अर्थ इज ऑलवेज हायर देन द प्लेसेस व्हिच आर फार अवे फ्रॉम द अर्थ. आप ये मान लीजिए कि समंदर की जो सी लेवल जो होता है वहां पे वो सबसे निचला पार्ट है, तो वहां पे एयर प्रेशर इज ऑलवेज हाईएस्ट, 101 किलो पास्कल्स. फिर ये दूसरा जोन है माउंट एवरेस्ट. आप मान लीजिए पहाड़, यहाँ पे द एयर प्रेशर इज ओनली 31 किलो पास्कल्स. किलो पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर. जस्ट मैं आपके लिए बोल रहा हूँ कि माउंट एवरेस्ट है, 29,000 फुट की ऊंचाई है, तो एयर प्रेशर घट जाता है. और फिर ऊपर के स्पेस में आप पहुंच जाते हैं तो एयर प्रेशर इज जीरो. विद ऑल्टीट्यूड, The conclusion is with altitude, जैसा जैसा हम ऊपर जाते रहेंगे एयर प्रेशर कम होता जाएगा. अब आप बोलेंगे कि इसका रेलेवेंस क्या है ग्रीन हाउस के साथ में, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इसको तो मान लीजिए आप कि जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर जाएंगे हमारा एयर प्रेशर घटेगा. दिस इज वेरी वेरी सिंपल. एंड इसीलिए टेक ऑफ के टाइम में एयरक्राफ्ट फुल थ्रस्ट से ऊपर आता है, और फिर आगे जैसे वो उस 30,000 33,000 की हाइट पे आ जाता है तो फिर आपको उतना वो नहीं लगेगा थ्रस्ट एयरक्राफ्ट का, क्योंकि वहां पे उसका एयर प्रेशर कम है, उसकी जो रेजिस्टेंस आ रही है वो कम आ रही है एयर की, इसलिए वो कम थ्रस्ट पे भी चल सकता है. इसको आप बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे समझ लीजिए. जो हमारे गोविंदास होते हैं जन्माष्टमी पे जो दही हांडी का ये करते हैं, उसमें भी अगर आपने नोटिस करा होगा सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग लड़के होते हैं, स्ट्रांग जो होते हैं, और सबसे ज्यादा जिनका नंबर होता है वो नीचे वाली पॉइंट पे होते हैं. और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो कम होता जाता है और अल्टीमेटली ऊपर में एक ही छोटा सा बच्चा होता है. नाउ इमेजिन सबसे ज्यादा प्रेशर किन पे है, सबसे ज्यादा प्रेशर इन लोगों पे है, क्योंकि ये जमीन के करीब है, ये जमीन, इसलिए हाईएस्ट प्रेशर इज ऑन देम. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ बॉयज गेट्स रिड्यूस, क्योंकि प्रेशर कम होता है, और बाद में एक छोटा सा बाल गोपाल जो होता है ऊपर में होता है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता. सो जैसे जैसे आगे ऊपर को और जाओगे एयर प्रेशर घटता है. जितना जितना आप जमीन के नीचे जमीन के साथ में होते होंगे एयर प्रेशर बढ़ जाता है. ये आपको समझना है. इसलिए चेन्नई जैसी जगह,
चेन्नई क्या ग्रीन हाउस के साथ में क्या रेलेवेंस है इसका? चेन्नई जैसी जगह जो समुद्र तल से के साथ में है, और शिमला जैसी जगह जो, या श्रीनगर जैसी जगह जो 5000 फुट पे ऑल्टीट्यूड पे है, दोनों जगहों में एयर प्रेशर में बहुत फर्क होगा। चेन्नई में एयर प्रेशर इज बाउंड टू बी वेरी हाई क्योंकि वो बहुत नीचे है, और श्रीनगर ऊंचाई पे है, द एयर प्रेशर इज बाउंड टू बी लो। इसलिए ग्रीन हाउस के डिजाइन ऐसे किए जाते हैं जो चेन्नई के एयर प्रेशर को भी सूट करता है तो उसका डिजाइन बनाया जाता है, जो कश्मीर के एयर प्रेशर को सूट करे तो उस तरीके का डिजाइन किया जाता है। आगे मैं और क्लियर करूंगा इसको। देखिए, आपने देखा कि जितना हम जमीन के नजदीक होंगे एयर प्रेशर हायर होगा। ये फिर वो अर्थ और उसका एटमॉस्फेयर है, जैसे जैसे हम दूर जाते रहते हैं मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एयर के वो डिस्पर्स हो जाते हैं, एयर प्रेशर कम हो जाता है। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो that what is this air comprised of? ये हवा में होता क्या है? When we say it is important that fresh air should get into the greenhouse, when we say कि air की velocity होनी चाहिए, तो हमारे लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है that what is air comprised of? होता क्या है हवा के अंदर में? The first thing is air contains 78% nitrogen. Please focus, please focus. Air contains 78% nitrogen. Then air contains 21% oxygen, right? Together it makes 99%. हवा में 78% नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन 21% है, दोनों मिलके 99% बनाते हैं। और ये 99% एयर जो है ये आपके प्लांट के लिए यूजफुल नहीं है। हवा से बहुत ही कम मात्रा में कोई प्लांट नाइट्रोजन लेता है, बहुत ही कम में ऑक्सीजन लेते हैं, बहुत कम। बट प्रैक्टिकली नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर आर नॉट टेकन अप बाय द प्लांट। तो आप ये मान लीजिए कि 99% ऑफ द एयर इज नॉट यूजफुल फॉर योर प्लांट्स। जितनी भी हवा आपने अंदर डाल दी अपने ग्रीन हाउस के अंदर में, उसमें 99% का कोई यूज नहीं है। अब बचता है हमारा 1%। अब इस 1% में होता क्या है ये जानना जरूरी है। इस 1% में होता है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और 350 ppm कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके अंदर में वाटर वेपर होता है, पानी भी होता है इस हवा के अंदर में, और फिर कुछ गैसेस होती हैं, आर्गन, ज़ेनॉन, हीलियम, कुछ टाइप की गैसेस होती हैं। नाउ इमेजिन, फोकस, प्लीज फोकस। 99% ऑफ द एयर इज नॉट इंपॉर्टेंट, is not good for your plants. इससे प्लांट को कोई फायदा नहीं होता। अब जो 1% बचा उसमें भी 0.03%, जिसमें जितना कार्बन डाइऑक्साइड है वही प्लांट का फूड है। So from entire air, it is only 0.03% of the air that is useful to your plants. उसका मतलब ये हुआ जैसे ही हवा अंदर आ गई, उसके अंदर में जो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड जैसे प्लांट्स ने कंज्यूम कर ली, तो उसके बाद जो ये हवा आपके ग्रीन हाउस के अंदर में बैठी है, ये हवा ग्रीन प्लांट्स के यूज की नहीं है। इट्स ऑफ नो यूज टू द प्लांट्स, बिकॉज इस एयर में दिस एयर हैड 0.350 ppm ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड हैज बीन कंज्यूम्ड बाय द प्लांट्स। नाउ दिस रेस्ट ऑफ द एयर इज इररिलेवेंट, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट। तो हमारा फर्ज क्या बनता है कि जल्दी से जल्दी हम इस एयर को बाहर निकालें, क्योंकि अगर हम इसको बाहर नहीं निकालेंगे तो नई हवा अंदर आएगी नहीं, तो इसको बाहर निकालना पड़ेगा। The moment we take it out, we create space for another air. तो फ्रेश एयर जो बाहर की है उसकी आने की स्पेस बन जाएगी अंदर के लिए, क्योंकि अगर ये फ्रेश एयर बार बार नहीं आएगी तो हमारे प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी मात्रा जो है, उसका जो कंसंट्रेशन अवेलेबल है एयर में, that is too low. And the moment this comes in, it is consumed by the plants, and after this carbon dioxide is consumed by the plant, rest of the air is of no use to the plant. So it is the first and foremost job of a greenhouse grower to make sure that this stale air is taken out of the greenhouse and we create space for fresh air. Unless we create, मैंने अभी आपको बोतल में दिखाया, जब तक हमने क्रिएट नहीं करी स्पेस, तब तक ना हवा अंदर जाती है न तब तक हवा बाहर जाती है। We need to create that air differential, then only the wind will move from one place to another.
और यहाँ पे अगर हमको ग्रीन हाउस के अंदर उसको लाना है तो हमको अंदर का एयर प्रेशर कम करना पड़ेगा एज कंपेयर टू बाहर वाला एयर प्रेशर. वंस दैट हैपन, the fresh air will come in, and this has to be a continuous process. Regularly अंदर की हवा को बाहर भेजना है, बाहर की हवा को अंदर लाना है. These air exchanges are very very important. We even calculate that कितने पर मिनट हमको कितने एयर एक्सचेंज चाहिए, पर ओवर हमको कितने एक्सचेंज चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 8 चाहिए. उसमें हम ग्रीन हाउस का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं. लॉट ऑफ कैलकुलेशंस इनटू दैट टू एंश्योर दैट द एयर इज टेकन आउट, स्टेल एयर इज टेकन आउट एंड फ्रेश एयर इज brought in. This is important. Air exchanges are important, and air exchanges in a greenhouse cannot take place unless the air inside the greenhouse, air pressure inside the greenhouse is reduced. Once it is reduced, fresh air will automatically come inside the greenhouse. बहुत बार आपने घर में भी देखा होगा, खिड़की आप खोलते हैं, हवा अंदर नहीं आती है because there is no differential. और कभी आप देखोगे कि हल्की से आप खिड़की खोलोगे, हवा अंदर आ जाएगी because there is a differential. That's why wind is blowing in. इस पॉइंट को आप याद रखिएगा. एंड रिमेंबर द एयर हैज ओनली 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड विच इज रेलेवेंट टू प्लांट. रेस्ट ऑफ द एयर इज नॉट रेलेवेंट टू प्लांट्स. अब ये जो मैंने आपको बोल दिया कि एयर मूव्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लो प्रेशर, ये एक फंडामेंटल फैक्ट है, ये साइंस है, दिस हैपन. लेकिन देयर आर थ्री फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस इट, जिनसे ये चीजें इन्फ्लुएंस हो जाती है. देयर आर थ्री फैक्टर्स. वो क्या क्या है वो थ्री फैक्टर्स? द वन इज ह्यूमिडिटी इसमें मैटर करेगी कि कितना डिफरेंशियल क्रिएट होता है, कितनी विंड अंदर आती है. द सेकंड इज टेम्परेचर, it will depend on the temperature, and the third is altitude, कितनी हाइट पे हम है. ये तीन चीजें भी इन्फ्लुएंस करती है मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया. अब व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी है क्या? कभी कभी मैं आपको बताऊं, ये जो तीन प्रोसेसेस मैंने आपको बोले, प्लांट फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपायरेशन एंड प्लांट रेस्पिरेशन. ह्यूमिडिटी ये एक और चीज है. टेम्परेचर, ये जो छोटी छोटी टर्म्स हैं, हम नॉर्मली क्या करते हैं? नॉर्मली व्हाट हैपेंस, वी आर अंडर द इंप्रेशन दैट वी नो इट वेरी वेल, बट व्हेन इट कम्स टू द टेक्निकलिटीज वी डोंट नो इट. एक्चुअली वी डोंट नो इट. इसलिए जब हम इसको अप्लाई करते हैं, व्हेन वी अप्लाई इट इन ए परफेक्ट रॉन्ग कंडीशन. एक गलत तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं. मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वंस वी आर थ्रू विद दिस वेबिनार, आप बिफोर गोइंग टू इंटरनेट और टू एनी बुक, व्हाट यू नो अबाउट दीज थ्री प्रोसेसेस एंड ह्यूमिडिटी, राइट इट ऑन द पेपर. और उसके बाद में 5 पॉइंट आते हैं, 8 पॉइंट आते हैं, 10 पॉइंट आते हैं, राइट देम ऑन द पेपर. उसके बाद में गो टू इंटरनेट और गो टू योर बुक्स एंड कंपेयर द टू. अगर उसमें डिफरेंस ज्यादा है, अगर उसमें आप जो लिख रहे हो और एक्चुअल में अगर उसमें दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो उसका मतलब है आपको ग्रीन हाउस चलाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. अगर उसमें डिफरेंस कम है तो मेरे से आप लिख के ले लीजिए, आपको कम मेहनत करेगी ग्रीन हाउस को सक्सेसफुली चलाने. Problem is not running it in the proper direction. No, problem is basically we have not understood the basics, and then we commit errors and keep on committing errors. हमारे लिए ह्यूमिडिटी का क्या रेलेवेंस रहता है नहीं मालूम अच्छे से. मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो. फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ट्रांसपिरेशन नहीं मालूम. लेकिन जब तक हमको ये मालूम नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, सक्सेसफुली अपना कल्टिवेशन नहीं कर सकते. तो ये एक एक्सरसाइज करिएगा एंड सी, इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू. नो, व्हाट इज ह्यूमिडिटी? बेसिकली ह्यूमिडिटी होती क्या है? ह्यूमिडिटी इज अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर एट अ गिवन टेम्परेचर. एक खास टेम्परेचर पे हवा में कितना पानी है, वो ह्यूमिडिटी होती है. बट दिस वाटर कैन बी प्रेजेंट ओनली इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. ये सिर्फ आपकी वाटर वेपर की सूरत में एयर में होना चाहिए. कोई मिस्ट है हवा में, कोई फॉग है हवा में, वो ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट नहीं करती है. ओनली water that is present in air in the form of water vapor contributes humidity. एयर की एक कैपेसिटी होती है अपने आप में पानी को रखने की, वाटर वेपर को रखने की एक कैपेसिटी होती है. When this capacity is full, जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना पानी जब उसके पास में आ गया, we say
ह्यूमिडिटी इज 100%, इट इज 100%, और इसको हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अगर ये पानी का कंटेंट कम है, जितना वो रख सकता था अपने पास उससे कम है, दैट कम है, तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उसको हम बोलते हैं RH, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है। और जो दोनों ह्यूमिडिटीज के बीच का जो डिफरेंस होता है, दैट इज ह्यूमिडिटी डेफिसिट, दैट इज ह्यूमिडिटी डेफिसिट। इसको मैं सिंपल वर्ड्स में आपको ऐसे समझाऊंगा। ये मेरे पास एक कंटेनर है, सिंपल कंटेनर जो आम आपने देखा होगा, इसकी कैपेसिटी है 100 ml पानी रखने की, राइट। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, अगर मैंने इसमें, इसकी कैपेसिटी पानी होल्ड करने की 100 ml है, मैंने इसमें 100 ml पानी पूरा भर दिया, तो इसकी ह्यूमिडिटी हो गई 100%। क्यों? जितना ये पानी रख सकता है उतना पानी इसके अंदर में हो गया, तो ह्यूमिडिटी इज 100%। अब ये 100 ml ले सकता है, मैंने 50 ml ही पानी भरा है, तो कितनी हो गई? अब ह्यूमिडिटी इज 50% only. It could hold 100 ml, but I have put only 50 ml into it. So humidity is only 50%. ये जो 50% है, this is relative humidity, और जो 100% है, that is absolute humidity. और दोनों ह्यूमिडिटीज के बीच का जो डिफरेंस है, उसको हम ह्यूमिडिटी डेफिसिट बोलते हैं। ये ह्यूमिडिटी इज क्रक्स टू एनवायरमेंट, कंट्रोलिंग एनवायरमेंट इनसाइड ए ग्रीन हाउस। फिर से मैं बताता हूं, जितना पानी रखने की कैपेसिटी है एयर की, जब वो फुल होता है तो वो 100% ह्यूमिडिटी हो गई, और उसको हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और जितनी वो कम होगी एक्चुअल से, तो उसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। एज इन केस ऑफ दिस कंटेनर, दिस हैज अ कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग 100 ml वाटर, 100 ml भर गया तो ह्यूमिडिटी इज 100%, 50 ml भर दिया तो ह्यूमिडिटी इज 50%, 40 ml भर दिया तो ह्यूमिडिटी इज 40%। दिस 40% जब हम बोलते हैं, दिस इज RH, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जब वो 100 ml पूरा भर गया, दैट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और दो ह्यूमिडिटीज के बीच का जो फर्क है, जो दिस इज ह्यूमिडिटी डेफिसिट, दिस इज ह्यूमिडिटी डेफिसिट। जितना ये डेफिसिट होगा, उतना मतलब है कि उतनी ह्यूमिडिटी हम बढ़ा सकते हैं। आपके ग्रीन हाउस में भी अगर ये ह्यूमिडिटी का डेफिसिट बढ़ाना, ह्यूमिडिटी बढ़ानी होगी, तो एक एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी तक ही हम उसको बढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो ये दिस डेफिसिट विल एक्चुअली डिसाइड कितनी ह्यूमिडिटी ग्रीन हाउस के अंदर बढ़ सकती है। आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। यहाँ पे मैं आपको ये बोल रहा हूं कि पानी रखने की कैपेसिटी एयर की जो है, उसको रखता है एयर अपने पास में। एयर कैन होल्ड वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, or when it is 100% to its capacity, it's known as absolute humidity. When it is less than that, it is known as relative humidity, and the difference between two humidities is known as humidity deficit. एक कॉमन लोगों के लिए मैं बोलता हूं, जिनको शायद साइंस से ज्यादा पढ़ा नहीं होगा या ज्यादा ध्यान नहीं होगा, ऐसे इस चीज को समझ लीजिए। लेट्स हैव अ पॉट, एक पॉट में हमने पानी, घर में चाय बनाते हैं, खाना बनाते हैं, कुछ भी, उसमें हमने पानी रखा है और उसके नीचे हम आग लगाते हैं। जैसे हमने उसको गैस पे रखा है, कहीं भी रखा, व्हाट इज हैपन टू दिस वाटर? इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर, ये भाप में चेंज हो जाएगा। एंड वेयर विल इट गो? कहाँ जाएगा ये वाटर वेपर? वेयर विल इट गो? खत्म हो। अगर आप कंटिन्यूअसली उसको बॉईल करते रहेंगे, कुछ समय के बाद पूरा पानी खत्म हो जाएगा। ये पानी जाता कहाँ है? ये पानी जाता है एनवायरमेंट में, एनवायरमेंट में जाता है, क्योंकि एनवायरमेंट में जो हवा है, उसके पास एक कैपेसिटी है इस पानी को अपने पास रखने की। उसको, अगर ये पानी फुल हो गया है पहले ही, जो हवा जितना ले सकती थी, अगर वो फुल है ऑलरेडी, फिर ये इस पानी को नहीं ले, ये पानी वापस कंडेंस होके नीचे आ जाएगा। आप गर्म सर्दियों में गर्म पानी से अगर बाथरूम में नहाते हैं, तो आप देखेंगे, पहले आपने नहाया तो कोई प्रॉब्लम, कुछ समय के बाद वो कंटिन्यूअस स्टीम जो उठता है वहां से आपके गर्म पानी से, इट विल गेट कंडेंस। जैसे अंदर की ह्यूमिडिटी, अंदर की जो हवा थे, जितनी वो पानी ले सकता उतना पहले उसने ले लिया, और उससे एक्स्ट्रा जैसे स्टीम आ गई, तो आप उसको देखोगे छत पे या सीलिंग पे, आप उसको देखोगे कंडेंस हो जाएंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगे। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि पहले आपको वो नहीं दिखते थे, क्योंकि उस टाइम ह्यूमिडिटी वाज नॉट एब्सोल्यूट, इट वाज नॉट 100%। फिर आपने नहाया, गर्म पानी यूज करा, तो और पानी उठा, और वाटर वेपर उठा। जैसे ही 100% ह्यूमिडिटी हो गई, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी आ गई, तो पानी स्टार्टेड कंडेंसिंग, कि वो छत के पास आपको कंडेंस होके दिखता है। दिस इज एन इंडिकेशन दैट कंडेंसेशन पॉइंट, ड्यू पॉइंट हैज रीच्ड। अब इससे आगे जो भी पानी है वो वापस टपकेगा, वो वापस
टपकेगा. सो दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमिडिटी जो आपको समझना चाहिए. नाउ फर्दर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. हम इसको फर्दर ऐसे एक्सप्लेन करते हैं. द as I told you that humidity is the amount of water vapor that air can hold. It changes with temperature. जितना पानी ये हवा अपने में रोक सकती है, ये चेंज होता है, ये परमानेंट नहीं है, ये चेंज होता है विद टेम्परेचर. जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना पानी होल्ड करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, उतना होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है. ऐसे आप देख लीजिए, ये एक छोटा चार्ट है. इसमें आप ये देख लीजिए, वाटर वेपर एक साइड से टेम्परेचर्स लिखे हुए हैं, दूसरी साइड से हमने वाटर वेपर लिखा हुआ है. कितना? 1 किलो हवा at 0 degree centigrade can hold 3.5 grams of water vapor. 5 degrees पे this increases to 5 grams. 10 degrees पे it increases to 7.8 grams. 15 पे it increases to 10 grams. 20 पे it increases to, ऐसा करके जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर विल इंक्रीज. ये एक फंडामेंटल फैक्ट है, ये एक फंडामेंटल चीज है जिसको आपको याद रखना चाहिए. नाउ हाउ इज इट रेलेवेंट टू माय ग्रीन हाउस? ऐसे इसको एक्सप्लेन करते हैं हम. पहले ये 15 डिग्री पे इट कैन होल्ड 10 ग्राम्स. 1 किलो हवा 15 डिग्री टेम्परेचर पे 10 ग्राम पानी होल्ड कर सकती है. राइट, इट्स सिंपल. नाउ लेट्स इमेजिन, पहले हम इस एक टर्म को, इस एक स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे. लेट अस कंसिडर दिस इज एन 1 kg, दिस इज एन पॉकेट ऑफ एयर. ये एयर का एक पॉकेट है, इसका टेम्परेचर 1 किलो इसका वजन है और टेम्परेचर इसका 15 डिग्री है. 15 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर. नाउ हाउ मच ऑफ वाटर इट कैन होल्ड? फ्रॉम द टेबल इफ यू सी, इट कैन होल्ड 10 grams of water. It can hold 10 grams of water. अब इसमें 10 ग्राम पानी भी आ गया. Now what is the humidity? What is the humidity here? Just ask yourself and see whether you are correct or not. The humidity is going to be 100% because at 15 degrees 1 kg of air can hold 10 grams of water and we have put those 10 grams into it. So humidity जो maximum थी वो meet out हो गई, absolute humidity बन गई. So here humidity becomes 100%. Now let us analyze this statement, the green one. Again, let us consider a air pocket, 1 kg air into it, having 1 kg air at, but temperature is 25. Here previously temperature was 15, now it is 25 degrees Celsius. But the water content is same, only 10 grams. Same. Now what is the humidity? The humidity is only 50%. Now what has changed among the two situations? Nothing, only the temperature. So with the rise in temperature, humidity is bound to decrease. Tomorrow if you go to your greenhouses and see the temperatures are increasing, the first thought that should come to your mind is that my humidity is going to decrease. Since temperatures are increasing, my humidity will decrease because the air, the water holding capacity of air will increase with increase in temperature. Now same third statement, the blue one, at 35 degrees. Again, let's have a pocket of air, same 1 kg of air, but temperature is 35 degrees. Initially it was 15, then 25, now it is 35, but water content is same. What will happen to humidity? Humidity is going to be only 28%. This is the relevance of humidity to your greenhouse. With every increase in temperatures, your humidity will decrease. ये एक स्टेटमेंट है जो आपको अच्छे से याद रखना चाहिए. और अब एयर, अभी तक मैंने आपको बोला कि मैं जो आपको ये चीजें बता रहा हूं, दिस इज स्ट्रिक्टली टू एक्सप्लेन हाउ एयर मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये उस सिलसिले में बोल रहा हूँ. ह्यूमिडिटी का प्लांट्स पे क्या असर आता है वो हम आगे करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ह्यूमिडिटी असर डालती है एयर मूवमेंट पे. अब यहाँ पे इस स्लाइड पे आप देखिए, गो कम टू दिस स्लाइड एंड लेट्स सी. दिस इज ये हमारा एक एयर का पॉकेट है और इसमें आपने ब्लू कलर के डॉट्स देखते हो. एज आई टोल्ड यू नाइट्रोजन इज 78%, तो इसमें 78% नाइट्रोजन है.
रेड कलर के देखते हो तो ऑक्सीजन है, 21% इज ऑक्सीजन, 21% इज ऑक्सीजन। एंड ग्रीन कलर के वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड अदर, वो आप सबसे कम देखते हो। दिस इज नॉर्मल एयर पॉकेट, दिस इज अ नॉर्मल एयर पॉकेट। अब हमारे पास में एक और एयर पॉकेट, एक और एयर पॉकेट है जिसमें हमने वाटर वेपर बढ़ाया है और ह्यूमिडिटी को इंक्रीज किया है। सो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स वी हैव इंक्रीज, नाइट्रोजन हैज डिक्रीज एंड ऑक्सीजन टू हैज decrease. Oxygen, nitrogen both have decreased, and this space has been taken up by water molecules, water vapor ने ये जगह ली है। Now जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो गई है यहाँ पे, now what will happen here? What will happen here? देखिए, एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन is 14, ऑक्सीजन 16 एंड हाइड्रोजन 1। ऐसे उन लोगों के लिए जिनको केमिस्ट्री का थोड़ा नहीं है मालूम, मैं आपको बताऊं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भारी होते हैं, उनका वजन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पानी के मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, वो भारी होता है। अब अगर आपके ग्रीन हाउस में या आपके एयर पॉकेट में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज्यादा है तो वहां की हवा जो है वो भारी होगी। जब वो हवा भारी होगी तो उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो ये जो एरिया बनेगा हमारा, ये हाई प्रेशर एरिया बनेगा। अब यहाँ पे क्या है, हमने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को कम किया है। कैसे हमने उसको कम कर दिया? हमने ह्यूमिडिटी बढ़ाई, वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स इस पॉकेट में हमने बढ़ाए। सिंस इनका वजन कम होता है, एक ही होता है, उनका 14 और 16 है, तो यहाँ पे जो एयर प्रेशर है वो घट जाएगा, दैट विल गेट रिड्यूस्ड। So humidity is a tool that will help in reducing the air pressure inside your greenhouse. And once that happens, what will happen? The air will start moving. And it will start moving from an area of high pressure to an area of low pressure. Very simple. हमने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो भारी है उसको रिप्लेस कर दिया विद वाटर वेपर, ह्यूमिडिटी। कैसे उसको कर दिया? हमने ह्यूमिडिटी बढ़ा दी। जैसे वहां ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो वो पॉकेट बनेगा, वो लो प्रेशर का होगा, लो एयर प्रेशर होगा। जैसे उधर लो प्रेशर खड़ा क्रिएट हो गया, द एयर मूवमेंट विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड्स द लो प्रेशर। सो एंड ऑफ द डे, लो ह्यूमिडिटी मीन्स हाई एयर प्रेशर and high humidity means low air pressure. Fundamental. High humidity means low air pressure and low humidity means high air pressure, and we have to ensure that high pressure area is outside the greenhouse, so that and low pressure area is inside the greenhouse, and that will ensure the movement of air from outside to inside. So this was humidity, how it helps. Humidity, how it helps in air movement. Then comes the second point, altitude। जो मैंने आपको बोला, मैंने बोला समंदर की तल की जितनी ऊंचाई है, जितना आप नीचे रहोगे, गोविंदा वाली पिक को आप याद करिए, जितना आप नीचे रहोगे उतना आपके ऊपर में एयर प्रेशर ज्यादा रहेगा, क्योंकि ऑल्टीट्यूड डिसाइड करता है किसी हद तक एयर प्रेशर को। अब आप ये मान लीजिए, ये जो लाइट ब्लू कलर का आप एरिया देख रहे हो, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये टोटल अर्थ एटमॉस्फेयर है जिसमें हवा है। इससे बाहर हम जाएंगे तो फिर एयर प्रेशर नहीं है। तो इसमें हमने ये you see 3 marks, 3 पॉइंट आप देखते हो। लेट्स सी द फर्स्ट वन। ये मान लीजिए पहला भी पॉइंट है, ये शिमला है या एक माउंटेन टॉप, राइट। अब आप देखिए इसके ऊपर में देयर इज अ मैन स्टैंड, राइट। अब आप देखिए इसके ऊपर में कितना एयर प्रेशर आ जाएगा, कितना एयर प्रेशर आ जाएगा, ये कॉलम बनेगा एयर प्रेशर का जो इसके ऊपर एक्ट करेगा, राइट, क्योंकि ये ऊपर चला गया है। It has this person has moved closer away from the earth. He is on a mountain top. He is in Shimla, जिसका और एक altitude है. He is in Srinagar, जिसका एक altitude है 5000 feet का. तो ये वहां चला गया तो air pressure will be lesser on him. Then a place like Delhi plains, इस यहाँ पे अगर कोई बंदा खड़ा हुआ है तो उसके ऊपर कितना एयर प्रेशर एक्ट करता है? It is this column. इतना एयर प्रेशर उसके ऊपर करता है, exert करता है. And the third one is sea level, Chennai. Now imagine the air pressure in Chennai. इतना बड़ा कॉलम चेन्नई में एक्ट करता है एयर प्रेशर का, क्योंकि वो नीचे है, अवे इट इज ऑल्टीट्यूड वहां का कम है. नाउ इसका रेलेवेंस क्या है ग्रीन हाउस के साथ में? इसका रेलेवेंस क्या है? अब अगर हमारे को
यहाँ पे आप ऊपर चले गए तो एयर प्रेशर इज लोअर, इस इंसान के ऊपर में जो है एयर प्रेशर कम है, इसलिए अगर हम यहाँ पे जो है ये मिडिल सा प्रेशर है। एंड ये जो तीसरा वाला है दिस इज हाई प्रेशर एरिया, क्योंकि एयर कॉलम आप देखिए कितना ऊंचा है यहाँ पे। तो जब ये एयर प्रेशर हम पता करेंगे किस जगह पे कितना है, नाउ इफ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ग्रीन हाउस इज हियर, ग्रीन हाउस इज हियर एंड ग्रीन हाउस हियर, द डिजाइन हैज टू बी डिफरेंट। इसलिए आप शिमला में जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा वेंटिलेशन नहीं मिलेगा, वेंटिलेशन कम मिलेगा। दिल्ली में आप जाओगे तो आपको थोड़ा वेंटिलेशन शिमला के मुकाबले में ज्यादा मिलेगा, लेकिन चेन्नई में प्लेस लाइक यू नीड huge ventilation to ensure faster exchanges of air. इसलिए altitudes को consider करना चाहिए, हमेशा का altitudes को consider करना चाहिए while designing our greenhouses. Then temperature का मैंने आपको बोला कि air pressure, winds move from area of high pressure to low pressure. लेकिन तीन चीजें हैं, that is humidity, how it influences the movement, then comes the altitude, how it influences the movement, and then third one is the air movement principle, and the third one is temperature. Temperature से air movement में क्या फर्क आता है, जहां पर भी अगर high temperature है, अगर temperature high है तो expand हो जाएंगे air molecule, दूर भागेंगे एक दूसरे से। आप गर्मियों में 10 लोग अगर एक साथ बैठेंगे तो और गर्मी हो जाएगी, लेकिन सर्दियों में अगर आप 20 को एक साथ बिठाओगे तो उनको गर्मी नहीं लगेगी। सेम है, जब गर्मी होती है तो एयर मॉलिक्यूल्स फैल जाते हैं, डेंसिटी उनकी कम हो जाती है, तो एयर प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। और अगर लो टेम्परेचर है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे आपने देखा एयर मॉलिक्यूल्स आर टू हाई, नंबर इज टू हाई, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो एयर प्रेशर हाई हो जाता है। तो ये तीन फैक्टर्स हैं, ह्यूमिडिटी, temperature and altitude, that influence the movement of air, though air always moves from an area of high pressure to an area of low pressure. And greenhouse में ensure करने के लिए कि हमारा air, we have to ensure that air pressure inside the greenhouse is lower, then only outside wind will blow in. So यहाँ पे मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ, and the reminder is that these three factors, humidity, temperature, जो अभी तक ये क्रक्स है एयर मूवमेंट को जो इफेक्ट करते हैं, ये तीन चीजें करते हैं। लेकिन whatever we have discussed till this slide about humidity, about altitude and about temperature, this we have strictly discussed in relation to movement of air. हमने ये डिस्कस करा है कि इससे एयर का मूवमेंट कैसे इन्फ्लुएंस होता है। अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा या ये नहीं जाना कि इनका रोल प्लांट्स के ऊपर में क्या है, इनका प्लांट्स के ऊपर में भी रोल है, दैट वी विल डिस्कस नाउ। लेकिन इन तीनों का बहुत बड़ा रोल है एयर मूवमेंट को कंट्रोल करने का, जो अभी तक मैंने आपको बताया। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टिपिकली what are the prime factors responsible for controlling the environment inside the greenhouse। और environment का basic point हमारा है ensure fresh air coming regularly inside the greenhouse। Now when we talk about the conditions in the greenhouse, what are those conditions? दो टाइप की कंडीशंस को हमको ध्यान में रखना है, एक इज इनसाइड द कंडीशंस एंड दूसरा इज आउटसाइड कंडीशन, क्योंकि आउटसाइड कंडीशन को ही मैनिपुलेट करके हम उसको ग्रीन हाउस कंडीशंस के लायक बनाने की हमको कोशिश करनी है। सो व्हाट आर दीज आउटसाइड कंडीशंस वी नीड टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट इज ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, सोलर रेडिएशन और लाइट, ये तीन हो गया। विंड वेलोसिटी, बाहर कितनी विंड वेलोसिटी है, और रेन तो नहीं, बाहर तो बारिश तो नहीं हो रही है। इन पांच चीजों पे हमको फोकस रखना चाहिए who wants to get into greenhouse cultivation, कि बाहर क्या हो रहा है और इसके मुकाबले में अंदर क्या हो रहा है और किन चीजों को हमको मॉनिटर करना चाहिए। दैट इज ग्रीन हाउस टेम्परेचर। सेकंड इज रूट टेम्परेचर, प्लांट के रूट का टेम्परेचर क्या है। लीफ टेम्परेचर, प्लांट के लीफ का टेम्परेचर क्या है। सोलर रेडिएशन और पावर लाइट,
लाइट कितनी आ रही है, सोलर रेडिएशन का भी मतलब है लाइट, लाइट कितनी आ रही है, पार लाइट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ये कभी लाइट बात बताऊंगा आपको तो अच्छे से डिस्कस कर पाऊंगा, आपको ये देखना चाहिए कि लाइट कितनी आ रही है, विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, मेरे ग्रीन हाउस के अंदर में कितना विंड स्पीड आ रहा है और उसका डायरेक्शन कैसा है, एयर सर्कुलेशन एंड एयर एक्सचेंजेस, क्या एयर सर्कुलेशन है मेरे ग्रीन हाउस में, क्या एयर एक्सचेंजेस हो रहे हैं ग्रीन हाउस में, ये आपको मॉनिटर करना है, वेरी सिंपल टू डू इट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ध्यान रखिएगा, आप समझ जाइएगा। वेपर प्रेशर डेफिसिट और ह्यूमिडिटी डेफिसिट, ये कितना है, ये कितना है, ये इनसाइड कंडीशंस को हमको फोकस करना चाहिए। अगर हम इसमें एक भी कंडीशन को कैजुअल लेते हैं और बाकी 6 कंडीशंस पे फुल फोकस रखते हैं, तो हमारा जो 6 के 6 पे जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, बाय वे ऑफ एनर्जी, बाय वे ऑफ टाइम, बाय वे ऑफ मनी, विल गेट वेस्ट, will get waste. We have to control, we have to monitor all the 7. If we don't, we won't be able to control the greenhouse environment. So यहाँ पे ये स्लाइड मैंने अभी आपके साथ में डिस्कस करी, ये चीज तीनों स्टेटमेंट मैंने डिस्कस करे। अब आप देखिए कि ये अगर मेरा ग्रीन हाउस है तो यहाँ पे इस टाइम मेरे ग्रीन हाउस की जो ह्यूमिडिटी है वो 100% है। फिर ये वाले टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया तो व्हाट विल हैपन टू ह्यूमिडिटी, इट विल गेट रिड्यूस। और टेम्परेचर बढ़ गया तो ग्रीन हाउस में क्या हो जाएगा, इट विल गेट फर्दर रिड्यूस। So remember, with every increase in temperature, your greenhouse humidity will automatically get reduced. तो कभी कभी हम क्या करते हैं, हमने 50 की ह्यूमिडिटी मेंटेन करके रखी है, सवेरे हमने 50, हाँ जी चेक करा 50 है जी ठीक है, 25 डिग्री का टेम्परेचर भी था जी ठीक है, जैसे 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा ये 50 रिड्यूस होगी 30 रह जाएगी, फर्दर 2 डिग्री बढ़ गया ये 50 30 हो गई, 30 से ये 20 हो जाएगी। सो इट विल कीप ऑन रिड्यूसिंग। जैसे ह्यूमिडिटी रिड्यूस हो गई, व्हाट विल हैपन, what will happen, the air pressure will increase, पानी कम हो गया हवा में, आपके एयर जो आपकी ह्यूमिडिटी का घटने का मतलब है the amount of water vapor inside the air inside the greenhouse has gone down। जैसे वो कम चला जाएगा उसकी जगह कौन लेगा, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, वो बारी हैं, आपका एयर प्रेशर अंदर का बढ़ जाएगा, जैसे वो बढ़ जाएगा तो आपके एयर एक्सचेंजेस घट जाएंगे, एयर एक्सचेंजेस घट जाएंगे। My request once more, please mute down your mics, please mute down. So this is effect of humidity inside the green, effect of temperature on humidity inside a greenhouse. With every increase in temperature, the humidity will decrease. ये जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ह्यूमिडिटी विल 100 से 50, 50 से 28 ये कम होती गई। नाउ प्लांट ट्रांसपायरेशन, जो मैंने आपको बोला कि ये टॉपिक फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन मैं और टच नहीं करूंगा, लेकिन ये मैं बार बार टच करूंगा क्योंकि यही ग्रीन हाउस, ये प्लांट का एक न्यूक्लियस है और यही ग्रीन हाउस एनवायरनमेंट अगर प्रॉपर है तो प्लांट ट्रांसपायरेशन विल टेक प्लेस, अदरवाइज इट विल नॉट टेक प्लेस। और प्लांट का काम है जितना पानी वो लेता है उसका 90% उसका काम है हवा में देना। सच इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट ट्रांसपायरेशन। तो व्हाट इज प्लांट ट्रांसपायरेशन, होता क्या है समझ लीजिए। इट इज एन इंटरनल अपवर्ड मूवमेंट इन प्लांट्स। प्लांट के अंदर से, ये बाहर से नहीं दिखेगा, प्लांट के अंदर से एक मूवमेंट होता है जो रूट से शुरू होता है और ऊपर की ओर जाता है, राइट, ऊपर की ओर जाता है और खत्म कहां पे होता है, लीव्स में और स्टेमोटास में, जो मैंने बोला छोटे छोटे छेद होते हैं। रूट से शुरू होता है, स्टेम के थ्रू चला जाता है, लीव्स के थ्रू चला जाता है और फिर जो लीव्स में छोटे छोटे छेद होते हैं, स्टेमोटास होते हैं, वहां पे ये प्रोसेस खत्म हो जाता है। इट इज एन इंटरनल अपवर्ड मूवमेंट इन द प्लांट्स। व्हाई इज इट नेसेसरी? अगर ये नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट खाना नहीं बनाए, खाना नहीं बनाएगा तो खाएगा क्या, जब कुछ खाएगा नहीं तो वो विल्ट हो जाएगा या वो मर जाएगा। इसलिए फोटोसिंथेसिस ट्रांसपायरेशन आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, इसलिए ट्रांसपायरेशन का होना बहुत जरूरी है। एक सिंपल तरीके से मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको फिर ये समझाने की कोशिश करूंगा कि ये हमारे पास में एक रूट है। As the definition says, it is an internal upward movement in plants.
इट बिगिंस इन रूट्स। ये कहाँ शुरू होती है? ये रूट्स में शुरू होती है। रूट्स में एक पुल आ जाता है और ये पानी को खींचते हैं, रूट्स पानी को खींचता है, और वो ये जो स्टेम है ये स्टेम के ऊपर चला जाता है, और जैसे ये स्टेम के ऊपर गया, देन व्हाट विल हैपन, देन इट गोज इनटू द लीव्स। और लीव्स में क्या होता है कि छोटे छोटे छेद होते हैं, और इन छेदों से इट गो, दिस इज एन अपवर्ड पुल। ये पानी का पुल आ गया जो रूट से शुरू हुआ, वाया प्लांट चला गया, एंड देन इट वेंट टू द लीव्स। प्लांट 90% पानी जो मैंने आपको बोला वो ट्रांसफर कर देता है, 10% यूज करता है, 90% ट्रांसफर कर देता है। और ये जो पुल है, दिस इज एन कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये दिन रात चलता रहता है, चलता रहता है, निकालता रहता है, रूट्स पानी देते रहते हैं, और ये पानी 10% प्लांट यूज करता है और 90% थ्रू स्टोमोटास ये एनवायरमेंट में चला जाता है। ये प्लांट ट्रांसपिरेशन स्टार्ट्स विद रूट्स, रूट से पुल आता है, पानी ऊपर चला जाता है, पत्तों में जाता है, 10% यूज होता है, बाकी का 90% जो है वो एज इट इज, बट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर वो एनवायरमेंट में चला जाता है। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट में पानी को रखने की कैपेसिटी होती है, जो मैंने आपको बोला ह्यूमिडिटी होती है। अगर उसमें कैपेसिटी होती है वो इस पानी को अपने उसमें ले लेता है। दिस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। नाउ any imbalance in environment, अगर इस environment में कोई imbalance हो जाए, ये environment ठीक नहीं हो ग्रीन हाउस के अंदर में, तो क्या होगा? अगर कोई environment में imbalance आ गई तो क्या होगा? ये जो प्रोसेस है ये रुक जाएगा। This transpiration upward pull will stop। जैसे ये स्टॉप हो जाएगा, ये स्टोमोटास जो है ये बंद हो जाएंगे, ये न पानी फेंकेंगे और न कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। जब ये अपना काम ही नहीं करेंगे तो प्लांट विल्ट हो जाएगा, प्लांट मर जाएगा, प्लांट्स विल डाई। सो प्लीज म्यूट सर, somebody is प्लीज म्यूट, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता। थैंक यू। नाउ अगेन कमिंग टू द प्लांट ट्रांसपायरेशन, मैं बार बार इसके बारे में आपको बोलता हूं कि इस प्रोसेस को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। देखिए क्या होता है, जब ये प्लांट ट्रांसपायरेशन होता रहता है तो प्लांट का जो ग्रोथ है वो स्मूथ होता है, चलता रहता है। इट कीप्स ऑन ग्रोइंग, इट कीप्स ऑन ग्रोइंग। इट्स समथिंग लाइक ए हाईवे। नेशनल हाईवे पे जब ट्रैफिक, ये 4 लेन का एक हाईवे है, सारे अपना वो एक मूवमेंट रखी हुई है, एक स्पीड रखा हुआ है, एंड ऑल व्हीकल्स आर मूविंग नाइसली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल वी हैव नाउ वेरी गुड हाईवेज एंड यू कैन सी कि कितनी अच्छी और स्मूथली हमारा ट्रैफिक चलता है। दिस ट्रैफिक हैज टू बी एज स्मूथ एज दैट इनसाइड ए प्लांट एज वेल। लेकिन कभी कभी आपने ये भी नोटिस करा होगा कि यही गाड़ियां जब टोल प्लाजा पे पहुंचती है तो वहां पे जैम लगना शुरू हो जाता है। जैसे वो वहां जैम क्यों लगता है? क्योंकि पीछे से जितना ट्रैफिक आ रहा था उतने आगे से स्पेस नहीं है साइमल्टेनियसली उस ट्रैफिक को क्लियर कर ले की, इसलिए जैम लग जाता है, एक लंबी सी लाइन लग जाती है। सेम वे ये रूट जो है, इट टेक्स अप वाटर, and if your environment and everything is smooth, this will be a continuous process। यहां से आएगा, यहां से निकलेगा, कोई टोल प्लाजा नहीं, कोई बैरिकेड नहीं, कोई कुछ नहीं, निकलता जाएगा, प्लांट विल परफॉर्म वेल। लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट ठीक नहीं है तो जो ये स्टोमोटास हैं ये स्पेस अपनी कम कर देंगे, बंद हो जाएंगे। जैसे वो बंद हो जाएंगे तो ट्रैफिक जैम, जैसे टोल प्लाजा है या एक्सीडेंट हो गया, रास्ते बंद हो गया तो जैम लग जाता है। जैसे जैम लग जाता है तो आपने ये भी नोटिस करा होगा, बहुत बार में फिर जब बहुत लंबा हो जाता है तो आगे से सिग्नल देते हैं लोग कि भैया इधर मत आओ, यहाँ ट्रैफिक जैम है, पीछे वापस मोड़ो। एंड देन यू विल सी लॉट मेनी पीपल टर्निंग बैक देयर व्हीकल्स। वो वापस क्यों जाते हैं? क्योंकि आगे से उनको सिग्नल मिलता है आगे जाने का रास्ता नहीं है। सेम वे इन अ प्लांट, जब यहाँ पे स्टोमोटास बंद हो जाते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, तो यहां से ये सिग्नल दे देते हैं रूट्स को, भैया आगे पानी मत भेजो, हम पानी आगे दे नहीं सकते, यू स्टॉप टेकिंग द वाटर। तो वो रूट पानी लेना छोड़ देता है। जैसे उसने पानी लेना छोड़ दिया तो जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस था वो इफेक्ट हो गया, इट गॉट डिस्टर्ब, एंड द मोमेंट इट गेट्स डिस्टर्ब, इट्स गोइंग टू किल द प्लांट। So ensure smooth
movement of water, and that can be ensured only and only if the environment inside the greenhouse is good, conducive for this water movement. How it affects, मैं आपको बताऊंगा. एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अच्छे से समझ लीजिए. यहाँ पे आप मान लीजिए आप अपने घर में रहते हो ग्राउंड फ्लोर पे, आपके पास एक पानी की टैंक, अकेले रहते हो, यू आर ऑल अलोन. You have a water requirement of this water tank that has a capacity of 100 liter, and one day you find a notice, आपको एक नोटिस मिलता है कि अगले 2 दिन पानी नहीं आएगा. So what will do? You store more. आप 25-25 लीटर के छोटी मोटी बाल्टियां थी, उनमें भी आपने पानी भर दिया to prepare yourself for any emergency के 2 दिन पानी नहीं आता है. Now imagine कि आप ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं और फर्स्ट फ्लोर पे एक और फैमिली है. इट्स एन फैमिली, और इनकी जो टैंकी है, इनकी फैमिली के साथ 500 लीटर की टैंकी है, और इनके पास ये नोटिस नहीं आया, इनको ये पता नहीं था कि पानी नहीं आने वाला है. और ऑल ऑफ ए सडन व्हेन दे केम टू नो कि पानी नहीं है, पानी हमारा खत्म हो गया, पैनिक हो गया. नाउ फर्स्ट थिंग दे विल डू, वो अपने पड़ोसियों से पानी मांगेंगे. तो वो उन्होंने आपको बुलाया, तो बोला साहब पानी की दिक्कत हो रही है, आपके पास अगर कुछ एक्स्ट्रा वाटर है हमको प्लीज दीजिए. यू एसेस योर ओन स्टोरेज एंड देन टेल हिम फाइन, एज एन गुड नेबर लेट मी गिव 25 लीटर टू. ठीक है, आपने दे दिया. थोड़ा समय हो गया, 25 लीटर से उनका कुछ होना नहीं था, वो फिर हो गए, आपके पास आ गए, और आपने अगेन यू सेड ओके मेरे पास थोड़ा है, आपने और 25 लीटर दे दिया. लेकिन 4 की फैमिली है, 25 लीटर इज नॉट सफिशिएंट फॉर देम. अगेन उन्होंने मांग लिया, आपने और 25 लीटर दे दिया. उसके बाद में भी उनका दिल नहीं भरा, उन्होंने फिर से आपको बोलने लगा नाउ यू विल स्टॉप थिंकिंग, तो यार मेरे पास है ही नहीं, मैं क्यों दूं, मैं कैसे दूं इनको. लेकिन आप सोचते हो यार चलो लेट मी टेक ए रिस्क, आप बोलते हो ठीक है बच्चे आपके घर में, आपने एक और 25 लीटर दे दिया. लेकिन ये 100 लीटर से इनका कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि इनकी जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है इनकी टैंकी की, वो बहुत ज्यादा है. ये अपनी डिमांड के हिसाब से आपसे पानी मांगेंगे. अब ये और पानी आपसे मांगते हैं. कुछ बेशर्म भी होते हैं ना पड़ोसी, उन्होंने बेशर्म होकर आपसे और पानी मांगा. नाउ व्हाट यू विल डू, आप बोलोगे भाई साहब नहीं, आई एम सॉरी, आप शायद ताला लगा के निकल जाओगे, बोलोगे मैं पानी नहीं दे सकता. बिकॉज व्हाई कैन नॉट यू गिव इट, बिकॉज योर डिमांड इज टू हाई. यहाँ प्लांट में भी ये जो रूट जोन है, इसकी एक कैपेसिटी है पानी लेने की. ये ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, और ये टॉप फ्लोर वाला, ये फर्स्ट फ्लोर पे रहने वाला, ये बार बार इसको पानी मांगता है. इसकी एक कैपेसिटी है. जब इसको लगता है कि नहीं ये इतना पानी मेरे से मांग रहा है, that I have to work beyond my capacity, it tells the plant I am sorry I cannot give. मेरे को अपने लिए भी पानी चाहिए, पूरे प्लांट को भी देने चाहिए. आप मेरे से पानी लेते हो, हल्का यूज करते हो, और फिर एनवायरमेंट में फेंक देते हो उसको. आई एम सॉरी आई कैनॉट डू दिस. सो व्हाट यू विल डू, द मोमेंट यू टेल हिम दिस, ये यहाँ पे बंद करता है ये काम, ये बंद कर देते हैं, स्टोमोटास बंद हो जाते हैं, ये पानी लेना बंद कर देते हैं, और विल्टिंग आ जाती है प्लांट्स में. अब इम्बैलेंस हो गया, जितना ये पानी ले सकता था और इसको दे सकता था, उससे ज्यादा की डिमांड प्लांट ने बनाई. और ये प्लांट ने ज्यादा डिमांड क्यों बनाई, क्योंकि एटमॉस्फेयर की जो ह्यूमिडिटी थी वो कम थी. जब एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी कम होगी तो इट कैन एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम द प्लांट. और ये बार बार प्लांट को एटमॉस्फेयर बोलता है मेरे को पानी दो, मेरे को पानी दो. जैसे वो प्लांट को बोलता है मेरे को पानी दो, प्लांट अपने रूट को बोलता है मेरे को पानी दो. और जब रूट इनिशियली कोऑपरेट्स, लेकिन जब उसको लगता है नहीं ये बियॉन्ड मेरी कैपेसिटी के हो रहा है, इट टेल्स हिम आई एम सॉरी आई जस्ट कैन नॉट डू इट टू यू, डू इट फॉर यू. तुम एनवायरमेंट में फेंक रहे हो पानी, मेरे पास इतना पानी नहीं है अभी, जितना मेरे पास है मैं उतना ही दे रहा हूं, उससे ज्यादा नहीं. जैसे स्टोमोटास को ये पता लग जाता है, वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि अपने पास रखना है ना पानी. आप अपनी टैंकी खाली तो नहीं करोगे ना, तो प्लांट भी जो उसके पास अपना पानी है उसको वापस स्टोर प्रिजर्व करने के लिए स्टोमोटास बंद हो जाते हैं. जैसे स्टोमोटास बंद हो गए तो कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक जो प्लांट की तरफ है वो रुक जाता है. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक रुक गया तो प्लांट को फूड मिलना, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, एंड अल्टीमेटली इट विल यू कैन ग्रो ए पुअर प्लांट, और विल्टिंग विल हैपन, प्लांट विल die. This is the process of transpiration, how it takes place. So maintaining this air balance of uptake of water and transpiration of water is very, very important, and this can only be done by controlling the environment. और environment में भी कैसे control हो सकता है? By maintaining proper humidity in the environment inside the greenhouse. How to do it? How to monitor it? Few more slides for that.
अगेन इसको समझ लीजिए, ये रूट सिस्टम है, ये आप एरियल वाला सिस्टम है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये टॉप फ्लोर है, और ग्रीन हाउस एनवायरमेंट और से एम्प्टी, ग्रीन हाउस एनवायरमेंट इज समथिंग लाइक एन एम्प्टी वाटर टैंक। अगर ये पूरा खाली है तो ये बहुत पानी मांगेगा, अगर ये आधा है तो आधा पानी मांगेगा। अगर इसमें 75% ह्यूमिडिटी है, देन इट विल कंज्यूम ओनली 25% मोर। इफ द ह्यूमिडिटी इज 50%, इट विल कंज्यूम मोर 50% वाटर। इफ ह्यूमिडिटी इज 20%, इट विल एब्सॉर्ब 80% ऑफ द वाटर। इसको समझ लीजिए, अगर आपके एनवायरमेंट की ह्यूमिडिटी 20% है, it has capacity to take 80% of water. It will ask for 80% water from the plant. If it is 50%, it will ask 50% water from the plant. If it is 80%, then it will ask for only 20%. क्योंकि जैसे ये 20% 80% ऐड हो जाएगा विद 20%, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी विल बी रीच और 100% ह्यूमिडिटी हो जाएगी, तो ट्रांसपायरेशन नहीं होगा। सो द maintaining humidity will ultimately decide the transpiration of the plant. How to do it? That I am going to tell you. A conclusion यहाँ पे मैं निकालता हूँ कि lower greenhouse humidity means higher transpiration. अगर आपकी ग्रीन हाउस की ह्यूमिडिटी कम है, इसका मतलब है आपका ट्रांसपायरेशन रेट जो है, लोअर ह्यूमिडिटी का मतलब है टैंकी खाली है, ऊपर वाली आधी है या 10% 20% भरी है, तो पानी की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो आपका ट्रांसपायरेशन रेट विल बी हायर। और अगर हायर ह्यूमिडिटी है एनवायरमेंट की, तो ट्रांसपायरेशन रेट विल बी लोअर। ना हमको लोअर ट्रांसपायरेशन चाहिए, ना हमको हायर ट्रांसपायरेशन चाहिए। वी नीड टू मेंटेन प्रॉपर ट्रांसपायरेशन। हाउ टू डू दैट? विल डू दैट। लेकिन यहाँ पे ये कंक्लूजन है, लोअर ह्यूमिडिटी मीन्स हायर ट्रांसपायरेशन एंड हायर ह्यूमिडिटी मीन्स लोअर ट्रांसपायरेशन। एंड रिजल्ट इज, जब ये इम्बैलेंस हो जाता है, विल्टिंग। कॉमनली आपने गर्मियों में देखा होगा, आप बहुत सारे प्लांट्स आप देखोगे ऐसे उनके पत्ते हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं ऐसे? क्योंकि जो पानी की डिमांड है वो बहुत हाई हो जाती है। पानी की डिमांड, एनवायरमेंट की जो पानी की डिमांड है वो हाई हो जाती है। उतना रूट पानी प्लांट को नहीं दे पाते हैं, तो वो मना कर देते हैं, रूट मना कर देती है। जैसे उसने मना कर दिया तो स्टोमोटास बंद हो गए, जैसे स्टोमोटास बंद हो गए तो विल्टिंग आ जाएगी, पत्ते ऐसे हो जाएंगे। फिर जैसे थोड़ा सा आप टेम्परेचर देखोगे कम हो जाएगा या आपने पानी की मात्रा बढ़ा दी, तो कुछ समय के बाद आप देखोगे वापस पत्ते खड़े हो जाएंगे। दैट मींस ट्रांसपायरेशन हैज टेकन प्लेस। बट ये जो ट्रांसपायरेशन में विल्टिंग आ जाती है, दीज आर मेजर शॉक्स टू द प्लांट। इससे प्लांट बहुत स्ट्रेस में आता है। दिस नीड्स टू बी अवॉइडेड। Wilting should not happen. You need to maintain humidity to such a level so that there is no wilting inside your greenhouse. If there is no wilting, that means the transpiration is continuing. This is humidity. Then the temperature. Temperature is very important for plant growth. आपको idea है कि temperature के ना अच्छे भी इफेक्ट हैं और बुरे भी इफेक्ट हैं। कुछ हायर टेम्परेचर के कुछ इफेक्ट्स ये हैं कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं प्लांट के अंदर, वो फास्टर हो जाते हैं, क्विक ग्रोथ हो जाती है, फ्रूट फॉर्मेशन हो जाती है जल्दी से। लेकिन टू मच ऑफ हायर टेम्परेचर, फ्रूट फॉर्मेशन हो जाएगी लेकिन फ्रूट विल नॉट गेन द साइज, इट विल नॉट गेन द साइज। ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इससे। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, इस हायर टेम्परेचर का जो इफेक्ट रहता है प्लांट के अंदर में, इट इज शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या रहता है कि शॉर्ट टर्म इफेक्ट रहता है पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड गेट्स पुअर। वो मैंने आपको बताया ही, ट्रांसपायरेशन में हायर टेम्परेचर हो गया तो हायर ट्रांसपायरेशन रेट हो गया, उतना पानी रूट्स उठा नहीं पाएंगे, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड विल बी पुअर। एंड लॉन्ग टर्म में क्या हो जाएगा कि फ्लावर फॉर्मेशन जो है, फ्लावर फॉर्मेशन है वो पुअर हो जाएगी when the temperatures are higher. So we need to maintain proper temperatures inside the greenhouse. टेम्परेचर से जो हीट बढ़ जाती है ग्रीन हाउसेज में, ये फ्लो करती है, इट फ्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हीट फ्लो के ना 3 प्रोसेसेस होते हैं, ये भी हम स्कूल में पढ़ते थे। 3 प्रोसेसेस, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। देयर आर 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व। हीट कैसे ट्रैवल करती है, बट वन थिंग इज देयर, हीट भी लो हाई टेम्परेचर एरिया से लो टेम्परेचर एरिया की तरफ जाती है। हीट भी जो ट्रैवल करती है, इट मूव्स फ्रॉम एन हाई टेम्परेचर एरिया टू, आग पे आप लोहे की रॉड रखिए,
सामने वाला एंड उसका आग में होगा, लेकिन दूसरे एंड आपने पकड़ा होगा, आहिस्ता 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 वहां पे भी गर्मी आ जाएगी, बिकॉज हीट हैज ट्रेवल्ड फ्रॉम हाई टेम्परेचर towards the low temperature. This happens in greenhouses also. This happens in greenhouses also. टेम्परेचर से अभी मैंने आपको बोला कि प्लांट गर्म हो जाते हैं, ऑब्वियसली कोई भी चीज गर्म हो जाती है। जैसे गाड़ी का कभी टेम्परेचर आपने बढ़ जाता है, गाड़ी में आपने देखो एक टेम्परेचर मीटर भी होता है जो हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर इंजन का जो टेम्परेचर हमको बताता है। इस इंजन के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए गाड़ी में एक मैकेनिज्म होता है, एंड दैट इज रेडिएटर कूलिंग, जिससे हम करते हैं, कूलेंट लगा रहता है, ये इससे वो कूल करता रहता है। इंजन चलता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन रेडिएटर साथ में चलता है तो उसको वो कूल करता है। सो दिस इज एन डिफेंस मैकेनिज्म इनसाइड ए कार। गॉड हैज आल्सो गिवन ए सिमिलर डिफेंस मैकेनिज्म टू द प्लांट्स। उसे प्लांट्स को भी एक डिफेंस मैकेनिज्म ऐसा ही दिया है, और वो कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूं। आप एक कॉमन आजकल साइट होगी, गर्मी का मौसम है, यू विल सी these earthen pots lying on the roads are here and there. इनमें पानी रखते हैं, घर में भी हम इनमें पानी रखते हैं, और ये पानी ठंडा हो जाता है विदाउट एनी फ्रिज, विदाउट एनी एनर्जी। ये पानी ठंडा हो जाता है। कैसे ठंडा हो जाता है कि इन earthen pots पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, दोनों पे वो पोर्स हैं, और इनके ऊपर जब हवा चलती है, बाहर रखे होते हैं हमने, हवा जब चलती है तो इन पोर्स से इवेपोरेशन हो जाता है, पानी उड़ जाता है। इवेपोरेशन इज प्रोसेस जिसमें पानी लिक्विड फॉर्म से चेंज हो जाता है टू वाटर वेपर। जैसे हमने पानी गर्म करा तो वो वाटर वेपर बन गया, ऐसे यहां पर भी एक नेचुरल प्रोसेस होता है, ये इसमें इवेपोरेशन बोलते हैं हम उसको। इसमें पानी स्टेट चेंज करता है फ्रॉम लिक्विड टू वाटर वेपर। जैसे वो वाटर वेपर में चेंज होता है तो इट कंज्यूम्स हीट, आसपास की गर्मी को वो कंज्यूम करता है। जैसे उसको कंज्यूम करता है तो जो मटके का टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है, और इससे हमारा पानी ठंडा हो जाता है। अब इस मैकेनिज्म, ये ऐसा ही मैकेनिज्म भगवान ने प्लांट्स को भी दिया है। व्हाट इज द मैकेनिज्म? लीफ और स्टोमोटा, छोटे छोटे छेद, जैसे इधर अर्दन पॉट पे छोटे छोटे छेद हैं, ऐसे ही सिमिलर वी हैव सिमिलर दीज स्टोमोटास ऑन ए लीफ। और यहां से क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला, स्टोमोटास पानी छोड़ती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। ये एक इंडिविजुअल है, ऐसा होता है स्टोमोटा, पानी को बाहर धकेलता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है। इस प्रोसेस को जल्दी करने के लिए हवा अगर इसके ऊपर में चले तो ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाता है। और ये जैसे इवेपोरेशन होता रहता है, तो जहां जैसे यहाँ पे इवेपोरेशन हो गया, ऐसे इवेपोरेशन यहाँ पर भी होता है, तो इससे क्या होता है, प्लांट का टेम्परेचर कम हो जाता है। दिस इज इन सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म इनसाइड द प्लांट। इसलिए अगर आप कभी भी अपने प्लांट्स का टेम्परेचर ग्रीन हाउस में चेक करेंगे तो ग्रीन हाउस का टेम्परेचर हमेशा हायर होगा, और प्लांट्स का टेम्परेचर, इफ दीज आर ट्रांसपायरिंग प्रॉपरली, लीफ का टेम्परेचर लोअर होगा। कितना लो होगा मैं बताऊंगा आपको, कैसे वो देखना चाहिए मैं बताऊंगा आपको, बट एज एन थंब रूल, एज एन जनरल रूल, the leaf temperature has to be, if it is plant is transpiring properly, the leaf temperature has to be lower than the atmospheric temperature. क्योंकि यहां पे भी इवेपोर कूलिंग हो रही है, यहां पे भी यही प्रोसेस अप्लाई हो रहा है। स्टोमेटास खुलते हैं, वाटर वेपर बाहर चला जाता है। आप याद रखिए, पानी जब प्लांट लेता है तो लिक्विड पानी होता है, लिक्विड पानी यहां से जब पानी जाता है तो वाटर वेपर जाता है। लिक्विड जब कन्वर्ट हो जाएगा वाटर वेपर में तो वो हीट उसको चाहिए ही चाहिए, वो एटमॉस्फेयर की हीट उसमें कंज्यूम कर लेता है। जैसे उसने एटमॉस्फेयर की हीट कंज्यूम कर ली तो वहां के उस एरिया का टेम्परेचर लोअर हो जाता है। और इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए अगर हम फैंस लगाते हैं अपने ग्रीन हाउस के अंदर तो ये प्रोसेस फास्ट हो जाता है। आप कभी भी नहा के निकलिए और अच्छे से अपना बॉडी मत ड्राई करिए, कीप इट ए बिट वेट एंड देन सिट अंडर ए फैन, हवा चलने दीजिए, आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा, because evaporation is taking place and evaporation causes cooling. So यहाँ पे गाड़ी के अंदर same mechanism is done by, controlled by the this thing. Just a minute.
गाड़ी में वो मैकेनिज्म कंट्रोल करता है लो टेम्परेचर करने का रेडिएटर सिस्टम, जो हमारा कूलिंग सिस्टम होता है। मटके पे वो करता है हवा, और मटके के अंदर जो पोर्स बने होते हैं ये वो। और प्लांट में वो मैकेनिज्म कंट्रोल करता है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन कंटिन्यूअसली वहां से पानी का उठना इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर कॉजेज कूलिंग, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, और प्लांट का टेम्परेचर डाउन आ जाएगा। तो थंब रूल ये है कि आपके अगर आपके प्लांट ट्रांसपायरेशन कर रहे हैं प्रॉपरली, द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट विल बी लेसर देन द ग्रीन हाउस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। देन ऐसे हम इसको स्टडी करते हैं। एक ग्रीन हाउस मानिए, इसका जो टेम्परेचर है आप 35 डिग्री सेल्सियस है, एक प्लांट है इसके अंदर में, और एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है विद द हेल्प ये एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इस 35 डिग्री, तो क्या होना चाहिए? प्लांट का टेम्परेचर लेस होना चाहिए, 30 डिग्रीज ही होना चाहिए, क्योंकि प्लांट ट्रांसफर कर रहे हैं और कूल कर रहे हैं अपने आप को। सो प्लांट्स वार्म अप, प्लांट गर्म हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लाइट एंड सोलर रेडिएशन, एंड प्लांट्स कूल देमसेल्फ बिकॉज ऑफ ट्रांसपायरेशन। और ट्रांसपायरेशन किस पे डिपेंड करती है? एनवायरमेंट इनसाइड द ग्रीन हाउस, ह्यूमिडिटी इनसाइड द ग्रीन हाउस से ट्रांसपायरेशन कंट्रोल होता है, और ट्रांसपायरेशन से कूलिंग होती है। तो लाइट जब आपके ग्रीन हाउस के अंदर आती है, लाइट का काम है प्लांट को गर्म करना, और ट्रांसपायरेशन का काम है प्लांट को कूल करना, प्लांट के टेम्परेचर को डाउन करना। अब जैसे मैंने आपको बोला, जब किसी भी चीज में जब पानी 100, जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना पानी उसने ले लिया, तो ह्यूमिडिटी बिकम्स 100%। अब प्लांट भी हमेशा उतना पानी अपने पास में रखते हैं जितनी इनकी कैपेसिटी होती है। सो प्लांट ह्यूमिडिटी इज ऑलवेज 100%। प्लांट ह्यूमिडिटी इज ऑलवेज 100%। इसके बाद में एक ह्यूमिडिटी आती है जो प्लांट के बिल्कुल आसपास में होती है, एक प्लांट के आसपास में होती है। दिस ह्यूमिडिटी कैन बी आइदर 100% और लेस देन 100%, राइट। फिर तीसरी ह्यूमिडिटी आती है जो ग्रीन हाउस के एनवायरमेंट की ह्यूमिडिटी आती है। ये ह्यूमिडिटी भी या तो 100% होगी या 100% से कम होगी, सिंपल। फिर एक और ह्यूमिडिटी आती है जो बाहर से है, आउटसाइड कंडीशन। दिस ऑल्सो कैन आइदर बी 100% और लेस देन 100%। तीनों सिंपल। सिर्फ प्लांट की ह्यूमिडिटी हमेशा 100% होती है। Now, first and foremost thing for us to ensure good transpiration rate is to remove this, प्लांट के आसपास की ह्यूमिडिटी को कम करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको कम करना इंपॉर्टेंट। जैसे ये कम हो जाएगी तो प्लांट से पानी उठ के इस एनवायरनमेंट में जाएगा। अगर ये 100% रही तो प्लांट से पानी नहीं उठेगा। प्लांट से पानी ना उठने का मतलब है नो ट्रांसपायरेशन इज टेकिंग प्लेस। एंड हाउ टू डू इट? इसीलिए वेंटिलेशन की जाती है ग्रीन हाउसेस के अंदर में। तो मैंने आपको ग्रीन हाउस प्रिंसिपल्स के टाइम में बोला कि हमारे पास साइड वेंट्स होते हैं, हमारे पास में टॉप वेंट्स होते हैं। और साइड वेंट का मतलब है कि हमको हॉरिजॉन्टल वेंटिलेशन भी करनी है, और टॉप वेंट का मतलब है वर्टिकल वेंटिलेशन करनी होती है। वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे करते हैं। डेंजर क्या होते हैं? हाई ह्यूमिडिटी में मोल्ड्स आ जाते हैं, फंगल इन्फेक्शंस आते हैं। लो ह्यूमिडिटी में बर्न्स आ जाते हैं, डीप बर्न्स एंड अदर थिंग्स। दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स। क्या हो जाता है, अब आप ये भी मान लीजिए कि कितनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। एक जो लेफ्ट हैंड पे एक आप देख रहे हैं ग्रीन हाउस है जिसकी ह्यूमिडिटी 80% है, और प्लांट की ह्यूमिडिटी एज आई टोल्ड इज ऑलवेज 100%। और दूसरे साइड में ग्रीन हाउस बी है, ह्यूमिडिटी इज इनसाइड द ग्रीन हाउस इज 20% एंड प्लांट ह्यूमिडिटी इज 100%। नाउ इन दिस केस यहाँ पे प्लांट ट्रांसफायर कर सकता है ओनली 20%, क्योंकि जैसे 20% पानी एनवायरमेंट में जाएगा, ह्यूमिडिटी विल बी 100%, तो ट्रांसपायरेशन रुक जाएगा। और यहाँ पे द प्लांट कैन ट्रांसफर 80%, क्योंकि एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी इज ओनली 20%। यहाँ पे 80% कर सकता है, तो यहाँ पे बहुत हाई ट्रांसपायरेशन हो जाएगी और यहाँ पे कम ट्रांसपायरेशन हो जाएगी। बोथ आर नॉट गुड। ना बहुत हाई होनी चाहिए ना बहुत लो होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? इट हैज टू बी समथिंग अराउंड 50%, 60%, ताकि कंटिन्यूअसली एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज देयर, जिससे लोड ना पड़े प्लांट के रूट्स के ऊपर, वो ना पड़े। तो 50 से 60% का ह्यूमिडिटी बेस्ट होता है नॉर्मली ग्रीन हाउसेस के अंदर में। बट in certain cases we need to lower it, in certain cases we need to, it cannot be fixed,
इट कैन नॉट बी फिक्स। और कहाँ पे इसको सेट करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, कैसे आपको उसको देखना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये मानना, कंसिडरिंग के मेरी ह्यूमिडिटी 50% मैंने रख दी, मैंने 60 रख दी, मैंने 80 रख दी, दैट इज नॉट ट्रू। ह्यूमिडिटी को कैसे एडजस्ट करना बहुत जरूरी है, बट इट हैज टू बी समवेयर बिटवीन 50 to 60% टू मेक श्योर दैट माय प्लांट्स आर ट्रांसफरिंग प्रॉपरली। ह्यूमिडिटी ब्रेक करने के लिए, एज आई टोल्ड यू, हॉरिजॉन्टल वेंटिलेशन एंड वर्टिकल वेंटिलेशन, दो टाइप की वेंटिलेशंस होती है ग्रीन हाउस। हेलो, यस सर फॉरेस्ट में ह्यूमिडिटी कितनी होती है जंगल में? जंगल में ह्यूमिडिटी, देयर इज नथिंग परमानेंट अबाउट ह्यूमिडिटी, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। बारिश का मौसम है तो ह्यूमिडिटी बहुत हाई होगी। जंगल में ऑब्वियसली ह्यूमिडिटी इज बाउंड टू बी वेरी वेरी हाई because it has lot of vegetation, so lot of transpiration is there, तो water vapor जो हवा में जाता होगा वो obviously बहुत high होगा, so humidity is bound to be on the higher side. Rains वहाँ होती है तो that is also one of the reasons कि humidity is bound to be higher. Okay, thank you sir. Now horizontal ventilation. What is horizontal ventilation? ये जो side vents होते हैं, these help us in horizontal ventilation. Horizontal ventilation is ventilation within the greenhouse. इसमें air की movement हम ensure करते हैं, but not with outside air. Within the greenhouse. Within the greenhouse air का movement होना चाहिए, air move करना चाहिए. This is horizontal ventilation. इसमें क्या होता है? और दूसरा जो होता है vertical ventilation. इसमें we ensure that air is moved out of the greenhouse. वो बाहर जाता है, air is moved out of the greenhouse, because which is very very important to ensure air exchanges. जो मैंने आपको बोला कि एयर को एक्सचेंज करना बहुत जरूरी है, वो वर्टिकल वेंटिलेशन से होता है। और एयर को अंदर मिक्स करना और एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करना अराउंड द प्लांट्स इज नो, उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल वेंटिलेशन इंश्योर करते हैं। कैसे किया जाता है? देखिए हॉरिजॉन्टल वेंटिलेशन में क्या होता है, क्यों ये जरूरी है। एक चाय का कप लीजिए, उसमें एक चम्मच हम रखते हैं, कुछ समय के बाद जब आप दूसरे एंड को चम्मच को पकड़ोगे तो आपको वो गर्म लगेगा, यू विल फाइंड इट हॉट। Why does it happen? It happens because heat has traveled from higher temperature area to a low temperature area. Simple. इसलिए चम्मच का दूसरा जो एंड है वो गर्म हो गया। Now imagine a greenhouse. ये हमारा ग्रीन हाउस है, ये इसके अंदर प्लांट्स है, राइट। नाउ एयर इज कमिंग इन, यहां से भी साइड वेंट से एयर अंदर आ गई। जैसे एयर अंदर आ गई, इसने वो यूज करी, यूज करने के बाद प्लांट्स ने, दिस एयर विल गेट हॉटर लाइटर एंड इट विल मूव अप, ये ऊपर जाए। अब अगर ऊपर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तो ये हीट ऊपर होके एक्यूमुलेट हो जाती है, जमा हो जाती है, इट विल गेट एक्यूमुलेटेड। जैसे ऊपर ये चली गई वहां का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जैसे वो टेम्परेचर बढ़ गया, प्लांट्स के पास का टेम्परेचर जो है वो क्या है, प्लांट ट्रांसफर कर रहे हैं, कोल कर रहे हैं, प्लांट के पास का टेम्परेचर इज लोअर, लेकिन वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है तो ऊपर का टेम्परेचर जो हो गया, एयर जो एक्यूमुलेट हो गई वो गर्म हो गई। जैसे ऊपर गर्म हो गई और नीचे कम है, हीट सिंक्स विल डेवलप, हीट के सिंक डेवलप हो गए, एंड नाउ व्हाट विल हैपन, द हीट विल स्टार्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम हायर टेम्परेचर टुवर्ड्स लोअर टेम्परेचर। ये हीट ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगा, टुवर्ड्स प्लांट्स आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ चला, ऐसे ही यहाँ पे if this ventilation is not proper, this heat will get accumulated and it will start moving downwards back towards the plant. तो plants में गर्मी आ जाएगी। So that is the importance of ये heat sink से क्या हो जाता है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग टेम्परेचर के पॉकेट्स बनते हैं और फिर वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर मूव करने लगते हैं। तो हमारा एज एन ग्रीन हाउस ग्रोवर हमारा ये फर्ज बनता है कि हम वो पॉकेट्स ना बनने दें, और उस पॉकेट को ना बनने का बेस्ट तरीका है कि अंदर की हवा को ऐसे मिक्स किया जाए कि यूनिफॉर्मिटी क्रिएट हो जाए, बाय वे ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट हो जाए। और उसके लिए व्हाट वी यूज इज, जैसे ये यहाँ पे मैं पहले आपको, जैसे ये हीट नीचे आ जाती है तो ये आहिस्ता आहिस्ता हीट के नीचे लेयर्स बनाती है। 1, 2, 3 different temperature zones are created near the plant, और प्लांट को ट्रांसफर करने में बहुत दिक्कत आती है, प्लांट स्ट्रेस में आ जाता है। Now how to break this humidity, these sinks, heat sinks, is with the help of
यहाँ पे यही चम्मच वाला रूल आ जाता है कि ऊपर से नाउ हीट विल स्टार्ट, ऊपर में हीट सिंक हो गया, प्लांट के पास में हीट टेम्परेचर लोअर है, हीट विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम अपवर्ड्स टुवर्ड्स द लो टेम्परेचर एरिया। इसको ठीक करने के लिए वी यूज फैंस। ये फैंस जो हम एक्सेल फैंस लगाते हैं ग्रीन हाउस के अंदर में, ये अंदर की हवा को मिक्स कर देते हैं। जो हीट के सिंक्स होते हैं उनको डेवलप नहीं होने देते हैं, उसको मिक्स कर देते हैं, यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करते हैं, तो हीट ट्रैवल नहीं करती है। और जब वेंटिलेशन प्रॉपर होगा, कैलकुलेटेड होगा, एयर प्रेशर कैलकुलेट किया होगा, उसके हिसाब से डिजाइन किया होगा गया होगा ग्रीन हाउस को, तो दिस एयर इंस्टेड ऑफ मूविंग डाउनवर्ड्स विल क्विकली मूव अपवर्ड्स। एंड जैसे वो ऊपर चला गया, उसने बाहर चला गया, तो अंदर का जो एयर का प्रेशर है वो घट जाएगा, उसने नई जगह बना ली, और वो नई जगह वैक्यूम तो अंदर रहेगा नहीं, वो नई जगह जो बन जाएगी उसको कवर करने के लिए बाहर की जो हवा है दैट विल इमीडिएटली कम inside the greenhouse. And this, when this process continues, then this process continues, the air exchanges are faster, बार बार। और एयर एक्सचेंज का फास्ट होना बहुत अच्छा है प्लांट के लिए, because more air exchanges means more carbon dioxide coming inside the greenhouse. More carbon dioxide means more plant food coming inside the greenhouse. This is horizontal ventilation. And the second is vertical ventilation. Vertical ventilation is to ensure air exchange. हवा को बाहर, पहले में हवा को मिक्स करना is the idea, and vertical ventilation में हवा को बाहर फेंकना is the idea. इसमें क्या किया जाता है कि नीचे की गर्म हवा को ऐसे हम इसकी वेंटिलेशन डिजाइन करते हैं ग्रीन हाउस को कि वो आराम से ऊपर जाके ऊपर से बाहर निकल जाती है, और जैसे वो बाहर निकल गई तो उसकी जगह लेने के लिए फ्रेश एयर कम्स फ्रॉम द साइड वेंट्स, और ये प्रोसेस चालू रहता है। दिस एयर हैज टू मूव आउट, दिस एयर हैज टू मूव आउट व्हिच हैपेंस थ्रू टॉप वेंट्स। नाउ व्हाट इज आइडियल ह्यूमिडिटी? क्या ह्यूमिडिटी होनी चाहिए हमारे ग्रीन हाउस में? देखिए, मैंने आपको इस टेबल को अच्छे से देख लीजिए। प्लांट ह्यूमिडिटी आई टोल्ड यू इज ऑलवेज 100%। ग्रीन हाउस ह्यूमिडिटी हमारी मान लीजिए या तो 100 होगी, 90 होगी, 20 होगी, 60 हो सकती है। इट कैन बी लाइक दिस। Plant transpiration, when humidity is 100%, plant transpiration will be nil. When humidity is 90%, plant transpiration will be low. When greenhouse humidity is 20%, the plant transpiration will be too high. When 100%, when this humidity, greenhouse humidity is 60%, transpiration will be reasonably good. अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर कंडीशन मेरे प्लांट के लिए ठीक है कि नहीं है? वो आपको पता लग जाएगा लीफ टेम्परेचर से। और आजकल लीफ टेम्परेचर मेजर करना कोई बड़ी बात नहीं है। कोविड की इतनी बड़ी दया है कि हर घर में इंफ्रारेड थर्मामीटर आ गया है। इंफ्रारेड थर्मामीटर से आप लीफ का टेम्परेचर एकदम से पता कर सकते हो, और फिर आप उससे डिटरमाइन कर सकते हो कि जो प्रेजेंट ह्यूमिडिटी मेरे ग्रीन हाउस के अंदर है, इज इट ओके और इट इज नॉट ओके। हाउ टू डू इट? नेक्स्ट स्लाइड। So ideal humidity will be indicated by the leaf temperature or by the difference between leaf temperature and the atmospheric temperature. इसका जो difference होगा उससे आपको पता लग जाएगा कि मेरी humidity सही है कि नहीं है। एक प्लांट, just a minute, ये एक प्लांट है which is inside a greenhouse. Fine, very simple. हमने एक हाइग्रोमीटर या एक टेम्परेचर मीटर लगाया है अपने ग्रीन हाउस में, जो हमको बताता है ग्रीन हाउस का टेम्परेचर क्या है। सिंपल, वट एवर इट इज, से 32 डिग्रीज है या वट एवर इट इज। ये लीफ है जिसमें स्टोमोटा लगे हुए हैं। ग्रीन हाउस का टेम्परेचर के लिए वी कैन यूज सिंपल एटमॉस्फेरिक थर्मोमीटर, और लीफ के लिए वी कैन ये ट्रांसफर करते हैं, अपने को ठंडा रखते हैं और लीफ टेम्परेचर उससे डाउन आ जाता है, एंड देन विद द हेल्प ऑफ एन इंफ्रारेड थर्मामीटर यू कैन मेजर द लीफ टेम्परेचर। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ग्रीन हाउस के टेम्परेचर को एक थर्मामीटर से मेजर करिए और लीफ टेम्परेचर को एक इंफ्रारेड थर्मामीटर से मेजर करिए। सिंपल। और लीफ का टेम्परेचर कम होना चाहिए, होगा इनफैक्ट इफ योर प्लांट्स आर ट्रांसफेरिंग वेल, ये कम होगा। एक डिफरेंस आ जाएगा आपको दोनों टेम्परेचर्स के बीच में। And this temperature you have to maintain a range of 2 to 6 degrees. ये थंब रूल है। आपका ग्रीन हाउस टेम्परेचर से और लीफ टेम्परेचर का डिफरेंस 2 डिग्री से 6 डिग्री का होना चाहिए। लीफ टेम्परेचर शुड बी लोअर
लोअर। 2 कब होना चाहिए और 6 कब होना चाहिए, ये मैं आपको बताऊं। सीडलिंग, छोटा प्लांट को बहुत ज्यादा ट्रांसफायर कराएंगे तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो बेचारा कर नहीं पाएगा। सो द लीफ टेम्परेचर difference has to be smaller. So when seedlings are there, the leaf temperature difference and atmospheric temperature difference has to be somewhere towards 2 degrees Celsius. एंड जब मैच्योर्ड प्लांट्स है, जहां पे उनको काम करना है, उनको फ्रूटिंग करना है, उनको ट्रांसफर करना है, मेहनत करना है, द डिफरेंस हैज टू बी हायर, मोर टुवर्ड्स 6 डिग्रीज। बेसिक रेंज इज 2 to 6। सीडलिंग है, छोटा प्लांट है, टेंडर प्लांट है, कीप द डिफरेंस मोर टुवर्ड्स 2। एंड अगर बड़ा प्लांट है, अच्छा प्लांट है, मैच्योर्ड प्लांट है, कीप द डिफरेंस मोर टुवर्ड्स 6। कैसे हम करते हैं मैं बताऊंगा आपको। अगर 2 से 6 का आपको डिफरेंस मेंटेन करना है, अगर आपका ट्रांसपायरेशन 6 है और आप उसको 2 पे लाना चाहते हो, तो ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करिए। ह्यूमिडिटी जैसे एटमॉस्फेयर की इंक्रीज हो जाएगी तो ट्रांसपायरेशन रेट विल डिक्रीज। जैसे ट्रांसपायरेशन रेट डिक्रीज हो जाएगा तो वो जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कम हो जाएगा। और अगर आपको 2 है और उसको 6 करना है तो ह्यूमिडिटी को कम करिए। अगर ह्यूमिडिटी आपकी कम हो जाएगी तो ट्रांसपायरेशन रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कैपेसिटी बन जाएगी। आप उस खाली टैंक को दिमाग में रखें, अगर टैंक खाली है तो ज्यादा पानी चाहिए तो ज्यादा ट्रांसपायरेशन हो जाएगा, ज्यादा ट्रांसपायरेशन हो जाएगा तो लीफ टेम्परेचर डाउन आ जाएगा। अगर वो टैंकी भरी पड़ी है तो कम टेम्परेचर कम पानी वो लेगा एटमॉस्फेयर, तो कम कूलिंग हो जाएगी तो लीफ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो small difference has to be 2 to 6 degrees. Tender plants, smaller plants, difference should more towards 2, and bigger plants, matured plants, the temperature difference has to be more towards 6. And how to do it is by increasing the humidity or decreasing. ये कुछ processes है जिनसे आप increase कर सकते हो, decrease कर सकते हो। जैसे proper watering हो, adequate plant spacing हो, अच्छी हवा चले तो humidity आपकी decrease हो जाएगी। Hang well drained floors में अगर पानी वानी कुछ जमा नहीं होता है तो आपकी ह्यूमिडिटी लो रहेगी। वार्मिंग प्लांट्स को आप गर्म करोगे तो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। मूविंग एयर एंड मेंटिंग, अच्छा एयर सर्कुलेशन करोगे तो ह्यूमिडिटी आपकी घट जाएगी। डिक्रीजिंग के लिए कल्चरल जो प्रैक्टिस होती हैं कि पानी पे ज्यादा मत फेरिए, फ्लोर पे जो लीफ की जो प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ है उसको कंट्रोल में रखिए। एयर सर्कुलेशन अच्छा कर लीजिए, जितना अच्छा एयर सर्कुलेशन होगा उतनी आपकी ह्यूमिडिटी घट जाएगी। ऐसे ही हाउ टू इंक्रीज द ह्यूमिडिटी इज बाय यूजिंग फॉगर्स, या फ्लोर पे पानी डाल दीजिए। ऐसा मौसम है जहाँ पे आपको लगता है कि ह्यूमिडिटी डाउन रहेगी तो थोड़ा सा आप जो डेंसिटी है प्लांट्स की उसको भी बढ़ा सकते हैं ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करने के लिए। Humidity and its impact on plants. Humidity drives transpiration of plant, ensures air exchanges. Atmospheric temperature, ये कुछ थोड़ी सी चीजें हैं जो प्लांट्स को डायरेक्ट इफेक्ट करती हैं, ये आप कहीं से भी आपको पता लग जाए। लीफ टेम्परेचर विल इंडिकेट प्लांट स्ट्रेस लेवल, कितना स्ट्रेस है प्लांट पे। रूट टेम्परेचर विल टेल अस whether root is absorbing nutrients or it is not. सोलर रेडिएशन, जो लाइट है वो कितनी है, क्या है, उससे आपको पता लग जाएगा कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है प्रॉपर कि नहीं हो रहा है। और लाइट से ही आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मेरे प्लांट्स को कितना पानी चाहिए। देयर इज एन कैलकुलेशन फॉर दैट, यू कैन डू द अमाउंट ऑफ, जितने भी पावर लाइट आपके अंदर आ सकती है उसमें अगर कैलकुलेट हम करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड वी कैन at once arrive at the amount of water that we should apply. Wind speed, अगर हवा नहीं चल रही है तो ट्रांसपायरेशन घट जाएगा, ठीक हवा चल रही है अंदर तो ट्रांसपायरेशन बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर डेफिसिट और ह्यूमिडिटी डेफिसिट जो होता है वो इंश्योर करता है ट्रांसपायरेशन। ह्यूमिडिटी डेफिसिट ज्यादा होगा तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा हो जाएगा, ह्यूमिडिटी डेफिसिट कम हो जाएगा तो ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगा। एयर एक्सचेंजेस ensures good carbon dioxide levels in the greenhouse. एंड रेन जब होती है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और इरिगेशन जो है कम होती है। थंब रूल में आपको बताऊंगा ग्रीन हाउस में, बिफोर यू इरिगेट योर प्लांट्स ऑलवेज लुक टुवर्ड्स द स्काई। इफ लाइट इज हाई, मोर इरिगेशन इज नीडेड, हाई वॉल्यूम्स ऑफ वाटर आर नीडेड। अगर बादल हैं, क्लाउडी है, ठंडा मौसम है तो लेस वाटर इज नीडेड। लाइट और पानी का बहुत आपस में बहुत गहरा संबंध है। लाइट को मॉनिटर करना चाहिए बिफोर इरिगेटिंग योर प्लांट्स, दैट इज इंपॉर्टेंट।
थोड़ा Excuse me. yes. Yes, Shobha, you wanted to ask something. Ma'am, please unmute yourself. Okay. How to measure root temperature? Root temperature can be measured with an ordinary simple thermometer. There are thermometers that have a sensor that you can put into the root zone, and that will give an idea about the temperature. And about solar radiations? Solar radiation is light. You should, most of the people use lux meters, but lux meters are not the proper meter. You should use a PAR meter, that is quantum meter, that is photosynthetically active radiation. That is basically the spectrum of light that is absorbed by the plants. You need to use a meter that gives you reading about that. So for solar radiation, there are solar radiation meters. PAR meters are for measuring the PAR light, the amount needed, the light needed by the plants. That is PAR. Solar radiation is total spectrum radiation, total. It includes heat as well. It includes ultraviolet, infrared, far red, and the PAR. This is total solar radiation. इसके लिए solar radiation meters आते हैं. But हमारे लिए most relevant meter is PAR meter, which gives us the reading about that part of the spectrum, that is 400 to 700 nanometer spectrum, जो plant absorb करते हैं, उसके लिए PAR meter use करना चाहिए. Right? There are 2 slides now. Once we finish up this slide, then I will reply all your answer all your questions. Don't worry. Now, first disturbance that can happen in your greenhouse is heat. Temperature बढ़ जाता है. जैसे temperature बढ़ जाएगा, what will happen? The greenhouse temperature will increase. What will happen to relative humidity? Temperature increase हो गया, relative humidity will decrease. जैसे relative humidity decrease हो जाएगी, what will happen to this vapor pressure deficit or that humidity deficit? It will increase. जैसे humidity deficit increase हो गया, your water demand will increase. More transpiration, water demand will increase. Transpiration rate will increase. This is one disturbance. Just in applying heat, increasing temperature means this is going to happen inside your greenhouse. Another one is evaporation. If a lot of evaporation is taking place inside, good air circulation, good air ventilation, good ventilations are there, good evaporation is there, what will happen to greenhouse temperature? It will decrease. Once temperature decreases, what will happen to relative humidity? It will increase. It will increase. What will happen to humidity deficit? It will decrease. The moment humidity deficit will decrease, what will happen to water demand? It will decrease. What will happen to plant transpiration? This too will decrease. Don't get confused. Don't get confused. I'm sure some of you must be, but this is simple. आप अच्छे से इसको समझ लेंगे ना, एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. You will learn it by heart. Then the third disturbance that happens is ventilation. Too much of ventilation and cold air coming in. Cold air coming in. Situation. The temperature will decrease. Again, the humidity will increase. Here, vapor pressure will deficit. Sorry, this is wrong. I'm wrong here. Should decrease. The water demand will decrease. There may be some mistake over here, but these are normally what happens with disturbances. और आपके लिए यही important है कि with the increase in temperature, your humidity will decrease, and low humidity inside your greenhouse means higher transpiration, and higher humidity inside your greenhouse means lower transpiration. Now there is a small exercise for all of you. Small exercise. This is the last slide. Small exercise for all of you. Consider this is a greenhouse. It has a temperature of 20 degrees and relative humidity of 50%, right? Now, let's put a balloon into it. Balloon A, having a temperature of 20 degrees, relative humidity 10%. And let's put another balloon, balloon B, temperature 20 degrees Celsius and relative humidity 90%. So what is the difference between the two? The first one is more air, less water. B, what is there? More water and less air. Right. This is when I talk about temperature relative humidity, this is inside the balloon.
And now we release both those two balloons to inside a greenhouse that has a temperature of 20 degree and relative humidity of 50%. Which balloon will rise higher and why? A or B? This is a small exercise. कौन सा balloon ज़्यादा ऊपर जाएगा? A या B? ये एक exercise है आपके लिए. 1 मिनट का समय मैं आपको देता हूँ. आप अपने level पे check करिए and then let's see how many of you were correct or not. And till you do that, we can listen. Sorry. Anyway. Please do it, and till that happens, you listen to some music. एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नाता है जो जीवन से हारे, एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा. Now, it got disclosed earlier as well, but I don't know how many of you could see it at that time. The balloon B will go higher. The balloon B will go higher. And you can just check how many of you were correct. And if some of you were not correct, doesn't matter. Failures are first step to success. So don't worry. Clear your concept. I'm sure you will do better. So why B balloon will go higher? Because of the fact that it has more water inside it. Humidity is higher. I told you in the earlier one, this thing, when water vapor is lighter than nitrogen and oxygen. Normal air, say water vapor is lighter. So the balloon that has more of water vapor inside will rise higher. And the one that has a lesser amount of water inside it will not rise to that extent. So what does it mean? It means the greenhouses wherein good humidities are maintained, the air inside will be lighter, it will move upper, and when ventilation at the top end is good, it will move out, and to fulfill the space that is lying inside the greenhouse vacant because air has gone up will be immediately fulfilled by the air that is coming from the side vents. That is horizontal ventilation. So good humidity, proper humidity, maintaining inside the greenhouse is of prime importance, and this is how you can control the environment inside a greenhouse. And to make sure whether my humidity is okay or not, the leaf temperature and atmospheric temperature difference is the tool that will tell you whether my humidity is proper or not, whether I need to increase it or I need to decrease it. So that was it. Thank you. Thanks a lot, everyone, for being there, for listening to me for 2 hours. It's not an easy job. Hope I have been able to communicate my message. If you have any questions, you can ask me now. If you want, you can privately, my phone number is there, my email ID is there with INA. You can send it through them. Let me tell you that after I did my first webinar, a lot of people contacted me in my personal capacity. I tried my level best to answer their queries.
There was one gentleman from Nasik, Mr. Ajay Kamath, who is there today also. I'm very sure Ajay is there. Ajay and me have developed a good rapport on phone, and we are very sure that whenever time permits, we'll meet each other. And he asked me so many things. I tried to help him. I don't know, Ajay. Ajay, you can tell about your experience. Thank you, sir, so much. It's been a great pleasure talking to you. For everybody also, Mr. Cawley is a very nice person. I did get a chance to talk to him, and he's been very helpful. And I learned a lot, to be very frank, when I first had first encounter with him. I had no knowledge, you can say, or very little knowledge, but with his expertise and with his guidance, I am moving faster than where I was before. So I'm very, very thankful to you, sir. Thank you so much. Thank you, Ajay. And Thank you, Kolsa. Thank you, Vishal. Thank you very much. Just a second. For reference, in case of any technical inquiries, right now you have phone numbers of Mr. Ashish Anand and Mr. Bhunesh. They are from AgriPlast. You can note down their phone numbers. You can note down the our website address, and you can get in touch with them directly. Give reference of this webinar, and they are ready to help you in answering any of your queries. Thank you so much. Thanks a lot. Kolsa, it was indeed a pleasure listening to you. Being from agriculture background and doctorate in the subject, it seemed that you have refreshed all my plant physiology courses, which I have studied over 10 years ago. Thank you very much. It was indeed my pleasure listening to you. Now we'll ask our participants if they have any query, any question. The house is open for discussion. Any query, any question. Though the feasibility is very low that they have any query now left with them. There are 1-2 questions in the chat box. I'll take that for you, sir. Okay. One question was, what was the impact of high temperature on the nursery plants? How does high temperature affect the nursery seedling particularly? When it comes to the nursery, the high temperatures will be quick growth, and internodal distance will be long, very long. But managing nursery under high temperature, you need to maintain very high humidity. You should maintain very high humidity so that you lower the transpiration rate of your plants. That will help you in growing a good stout plant. Good stout plant. Another thing I would like to add to the discussion already Kolsar has given, that in controlled conditions, since Kolsar has not discussed anything about carbon dioxide. Carbon dioxide is one of the heaviest air and mostly remains near to the ground. So the intake and the microclimate temperature between the plants will be higher. With this, the growth will be faster as compared to the open conditions. Am I right, Kolsa? Absolutely, sir. मैं agriculture से नहीं हूँ, sir. No, nothing like that. Absolutely The only right. thing is because carbon plays an important role in the building of the plant. When carbon concentration is higher, coupled with high temperature, it will obviously lead to the sturdy plant development. So this was one of the basic concept why controlled conditions, even poly houses were introduced for the cultivation of these plants. Any other query from anyone? Another query is, what is the minimum lumes for the ideal growth of the plant? Minimum? Minimum, I think there is some spelling error. Can we grow some trees around greenhouses to give fresh air and pure air and to control temperature? If it is possible, please suggest the name of the trees. There are certain plants that we can afford to grow. These are normally used as windbreakers because greenhouses are prone to wind velocities. Wind velocity से बहुत नुकसान हो जाता है.
In order to prevent that, you do grow some plants around the greenhouse, but not very close to them. ऐसा नहीं होना चाहिए wind velocity से पेड़ ही गिर गया और वही greenhouse के ऊपर में गिर गया. But there are certain wind breakers plants. If you, I don't, names don't come that fast to me right now in my mind. If you permit, should I answer? Yeah, please. It has a direct correlation with the height of the polyhouse or your greenhouse. It should be not less than the 3 times the distance from the polyhouse, number one, and the height should at least be 3 to 4 times of the height of the polyhouse. Only then it will act as a windbreaker. And some of the trees are eucalyptus, poplar, and in the intermittent spaces, we can go for some shrubby plants so that there is an upward thrust to the air so that it does not has any direct impact on the greenhouse. एक क्वेश्चन मेरा है कौल साहब, मैं पूसा इंस्टीट्यूट में हूँ प्रिंसिपल साइंटिस्ट AK सिंह जी. कि अगर आप टेम्परेचर ह्यूमिडिटी की बात कर रहे थे, सोलर रेडिएशन की बात कर रहे थे, ये मेजर फैक्टर होते हैं. पूसा में आप हो सकता है जानते हो इंडो इराई प्रोजेक्ट है, हम उसी में काम कर रहे हैं, AK सिंह नाम हमारा. तो मैं यहाँ जानना चाहूँगा कि कितने लेवल तक ह्यूमिडिटी और कितने % ह्यूमिडिटी और कितने सेंटीग्रेड टेम्परेचर और कितनी सनशाइन को हम कट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो नेचुरल चीज़ है तो आती है. और उसके बाद जब इंक्रीज होता है तो जो हमारी इंडियन कंडीशन में जो मैन्युफैक्चरिंग है पॉली हाउसों की, तो वो क्या कितना कम कर सकते हैं, इस पे कुछ जानकारी दे सकते हैं? कितनी ह्यूमिडिटी को नहीं, टेम्परेचर कितना कट कर सकते हैं, कितनी ह्यूमिडिटी कट कर सकते हैं, क्योंकि इंक्रीज तो हो जाती है लेकिन डिक्रीज करना बहुत कठिन काम होता है हमारे जो इंडियन कंडीशन है. तो अगर हम प्रयास करते हैं डिक्रीज करने का, तो किस लेवल तक हम डिक्रीज कर पाते हैं, कितनी लेवल को डिक्रीज करने के लिए यू मस्ट, जैसे टेम्परेचर है कितने सेंटीग्रेड कम कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी कितना कम कर सकते हैं? I will tell you. देखिए, अगर हम नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस की बात करते हैं तो नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस में इफ वी पुट ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब थर्मोमीटर, उसमें जो डिप्रेशन आएगा वेट बल्ब तो कम टेम्परेचर दिखाएगा और ड्राई बल्ब ज्यादा दिखाएगा. वो डिप्रेशन जो है वो एक बेस है, इतना टेम्परेचर डाउन हम कर सकते हैं. दैट इज द मैक्सिमम लिमिट that is the maximum limit of reducing the temperature. This can, in a naturally ventilated greenhouse, it can be done with good air circulation and good transpiration. अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ हो प्लांट्स की. अब आप देखिए, जैसे क्यूकम्बर की हम क्रॉप लगाते हैं ग्रीन हाउस में, एक प्लांट पे अगर 10 लीफ भी हो और अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ हो तो 10,000 प्लांट अगर उसमें लग गए तो 1,00,000 प्लांट होते हैं, 1,00,000 पत्ते होते हैं. जब 1,00,000 पत्ते एक साथ में ट्रांसफर कर देते हैं तो ट्रांसपायरेशन जो कूलिंग होती है ग्रीन हाउस की वो बहुत डाउन हो जाती है. तो विदाउट यूजिंग एनी एनर्जी वी हैव बीन एबल टू रिड्यूस ग्रीन हाउस टेम्परेचर्स बाय 6 to 8 degrees inside the greenhouse by natural ventilated greenhouse की मैं बात कर रहा हूँ. Yes, by maintaining good vegetative growth of the plants and ensuring good ventilation. देखिए, हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम जो है कि हमारे लिए ग्रीन हाउस इज समथिंग लाइक स्ट्रक्चर और पॉलीथीन लगाना. अगर मान लीजिए फैन पैड है, यानी जिसको सेमी क्लाइमेट कंट्रोल बोलते हैं, फैन और पैड में भी इट्स एन यानी डिवाइस बेस्ड ग्रीन हाउस है, तो कितना कर देंगे? देखिए, फैन और पैड भी एक इवेपोरेटिव कूलिंग है. इसमें भी व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज के पानी जो आता है उसकी एक थिन सी जो लेयर होती है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर. और उस ट्रांजिशन में when water gets converted from liquid to vapor, it consumes heat और उससे temperature down आ जाता है. The maximum temperature down is always subject to the depression created between wet bulb and dry bulb thermometer. हाँ, वो तो बेसिक चीज है. तो वही पूछना चाह रहा था कि आप क्योंकि अच्छा ज्ञान रखते हैं और अच्छी जगह पे हैं, हम लोग थोड़ा हैं, ठीक है, हम भी साइंटिस्ट हैं, कर रहे हैं काम, लेकिन हम लोगों को कुछ कहीं न कहीं कठिनाई आती है या डिवाइस वगैरह काम नहीं करती हैं, तो हम लोग उस चीज़ को अच्छा नहीं देख पाते. तो मैं सोचा कि जब आपसे ज्ञान लूँ मैं कि क्योंकि जैसे नेचुरल में
आप जैसे मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा आप बताए, तो नेचुरली वेंटिलेटेड में जो मुझे लगा कि ऑलमोस्ट सिमिलर होगा एम्बिएंट टेम्परेचर के, या ज़्यादा 1 डिग्री कम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपने बताया। It is 5 से 6 तो बहुत होता है, लेकिन इसका एहसास हम एकदम कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि राइट, बट क्योंकि मैंने जो पाया, हो सकता है हमारा टेम्परेचर मीटर अच्छा नहीं रहा हो, या जो हमारी डिवाइस जो, तो नेचुरली में विदाउट डिवाइस तो हम 1 तक अधिकतम, अगर गुड वेंटिलेशन है, गुड ओरिएंटेशन है और गुड हाइट है, और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ द कवरिंग मटेरियल अगर को हम लेते हैं, तब हम 1 डिग्री ज़्यादा 1.5 या 2 के बीच में जाते हैं। कंप्लीट 2 भी अभी तक मैंने नहीं पाया। 6 लेकिन degrees अगर हम जब सेमी क्लाइमेट कंट्रोल में जाते हैं, डिवाइस बेस्ड ग्रीन हाउस में जाते हैं, जिसमें सारे डिवाइस लगी होती हैं, उसमें हमने 4 से 5 ही घटा पाया, और वो भी बहुत मेहनत के बाद। देखिए एक basic- तो इसलिए जो मैंने कहा, जो सनलाइट की बात है, सनलाइट तो ठीक है, 30% और 50% सेट नेट लगाएंगे, अपने आप हमारा काम हो जाएगा। देखिए फर्स्ट थिंग इज कि तो ये मैं थोड़ा जानना चाहा कि क्या है। एक मिनट आप मेरी बात, मैं आपको ये बताऊं कि टेम्परेचर डिफरेंस का होना ये स्टैटिक चीज नहीं है कि हमेशा 6 डिग्री होगा 8 डिग्री होगा। लॉट विल डिपेंड ऑन द आउटसाइड कंडीशंस एज वेल। और एक बात जो आप बेसिक प्रिंसिपल है कि जो वेट बल्ब और ड्राई बल्ब का डिप्रेशन है, दैट इज द मैक्सिमम यू कैन डू, दैट इज द मैक्सिमम यू कैन डू। और फैन और पैड में भी योर एफिशिएंसी कैन नॉट बी मोर देन 80%। अगर आपका डिप्रेशन 8 डिग्री का आता है तो फैन और पैड चला के आप 6 डिग्री ही टेम्परेचर डाउन कर सकते हैं। तो 80% फॉगिंग सिस्टम जो है, एक अच्छा फॉगिंग सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस थिंग, एक बहुत अच्छा फॉगिंग सिस्टम इन अ नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस कैन रिड्यूस टेम्परेचर बेटर देन एन फैन एंड पैड सिस्टम, लेट मी टेल यू। क्योंकि वहां पे जो आपका वाटर के ड्रॉपलेट जो आप बनाते हैं ना, दोज आर टू स्मॉल, so evaporation is very high, or while when that evaporation is very high, a lot of heat is consumed, so temperature difference will be higher, but you need a very efficient fogging system, very efficient. हाई लो तब होगा अकॉर्डिंग टू एज ऑफ क्रॉप ना। इवापोरेशन का कोरिलेशन आप ही बता रहे थे, ग्रोथ से होता है ना, छोटा इतना बड़ा होगा तो इवापोरेशन रेट कम होगा, डबल तो होता है ना, मतलब लो मीडियम हाई एंड फाइनल, तो इवापोरेशन रेट तो डिपेंड करता है, लेकिन उस बीच में हमारा टेम्परेचर अप डाउन होता है, ह्यूमिडिटी अप डाउन होती है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। और अगर बढ़ाना हो तो क्या करें? ह्यूमिडिटी, डिवाइस का उपयोग करें। टेम्परेचर बढ़ाना हो कि ह्यूमिडिटी बढ़ाना? दोनों, जब करेंगे तो दोनों बढ़ेगा चाहे घटेगा। घटाना होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम टेम्परेचर, मान लीजिए सर विंटर सीजन है, नवंबर दिसंबर जनवरी, ये 3 महीना बहुत क्रिटिकल होता है, और ग्रीन हाउस कल्टीवेशन के लिए भी होता है, आउटसाइड के लिए भी होता है। आउटसाइड के लिए तो बहुत ही क्रिटिकल होता है, तो उसमें हम क्या करें, कुछ हमें बताइए। अगर ह्यूमिडिटी को हमको, देखिए नॉर्मली पहले मैं ये बताऊंगा, जो हाई ह्यूमिड एरियाज होती हैं जहां ह्यूमिडिटी को नीचे करना बहुत मुश्किल होता है। मैं सर प्लेन का पूछ रहा हूँ और मैं खुद सीखना चाह रहा हूँ। दूसरा क्या है कि ह्यूमिडिटी तो विंटर सीजन में ऑटोमेटिक बढ़ी जाती है, टेम्परेचर का क्या करें, सनशाइन का क्या करें, कुछ है कुछ आइडिया? करना चाहते हैं कि सर विंटर पूछ रहा हूँ, विंटर में टेम्परेचर डाउन क्यों करेंगे? नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी, विंटर है तो बढ़ाना ही है टेम्परेचर। टेम्परेचर। डॉक्टर साहब, I have a request. I think this is a specific question. You can contact directly to Cole sir. हाँ ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, आप ही परमिट किए कि कुछ पूछा जाए। नहीं, बिल्कुल। मैं ऑलरेडी मैं IRI में हूँ और मैं नियर बाय 20 ईयर से काम कर रहा हूँ। मुझे दिक्कत आती है तो जो ट्रेडिशनल हमारा दिमाग काम करता है, यानी जो साइंटिफिक के अलावा, जैसे किसान क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए दिन रात पर्दा गिरा देता है, उसमें जो ड्रॉबैक जो आता है कि पॉलिनेशन होता नहीं, फ्रूट सेटिंग होती नहीं, फिर वो कहता है कि हमारा तो पूरा बेकार चला गया। और अगर हम वेंटिलेशन कराते हैं तो टेम्परेचर लो हो जाता है। अब ये दोनों मिस्ट्री को कैसे हम सुलझाएं? वेंटिलेशन देते हैं तो पॉलिनेशन तो होता है, जब टेम्परेचर लो हो जाता है तो ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होता है उसके। तो ये जो मिस्ट्री है वो कैसे समझाएं, क्या करें,
इस पे मेरा थोड़ा सा दिमाग चल रहा था, हो अभी सकता है हम कुछ नए वो है। इस पॉइंट को अब लेकर उसमें हमने जो मिस्ट्री समझाने की कोशिश किया कि पॉली हाउस को धुलना अनिवार्य है, जो मैंने पाया, सनशाइन को आने दो, टेम्परेचर बढ़ेगा। और वेंटिलेशन हम 3 घंटा कराने के लिए अलाउ करते हैं, 3 घंटे के बाद पर्दा गिरा दो, जिससे वेंटिलेशन हो, पॉलिनेशन जरूर हो। जैसे मूवमेंट जितना ज्यादा एयर का होगा उतने सेल्फ पॉलिनेटर में पॉलिनेशन होता है, उतना बनता है। नहीं तो आप देखिए क्या होता है कि जिस हाइट तक जो वेंटिलेशन के जो हाइट होती है, कई बार हमको मिला कि अगर चारों तरफ पॉलीथीन लगा है 2 मीटर तक, तो ये देखने का है 2 मीटर हाइट तक टमाटर में और शिमला मिर्च में फ्लावरिंग हुई, फ्रूट सेट नहीं हुआ। और जैसे जब पर्दा पाया, जब जो इंटीग्रेशन की हमने बात की, वेंटिलेशन एरिया जब मिली, तो 2 मीटर के ऊपर फ्रूट बन रहा है। ये समझने में हमें लगा 4-5 साल, बाद में समझा को तो एरेशन की प्रॉब्लम है। तो सर यहाँ कहीं कहीं डिजाइन ऑफ द ग्रीन हाउस और ये जो मिस्ट्री है कि अगर हम खोलते हैं तो टेम्परेचर जाएगा, क्योंकि उन्होंने अबाउट दैट कि 20 डेज 15 डेज जो है फॉगिंग होती है, सनशाइन रहती ही नहीं है। तो ये एक चीज हमें बड़ा दिक्कत करती है। उसमें हम लोगों ने जो अलाउ किया कि इलेक्ट्रॉनिक पॉलिनेटर जो होते हैं उनसे हम पर डे पॉलिनेट करें, या हम जो है कोई डंडा लेकर के पॉलिनेशन के लिए जो तार बंधे होते हैं उस पर हम वाइब्रेट करें, तो उससे हमारा काम हो जाता है। और पर्दे को जरूर खोलें, अन्यथा डिजीज भी आता है। बिना वेंटिलेशन के, बिना फ्रेश एयर के हमारी फ्रूट सेटिंग नहीं होती है विंटर में। These are some ये of the 90 दिन का 90 दिन suggestion का and मेरा, experiences being shared by you, sir. 90 दिन का एक बहुत क्रिटिकल पोजीशन हम लोगों के लिए होती है। और हम लोग इस चीज को इसलिए शेयर किए कि अगर कुछ इस पे भी हो सके प्रकाश, तो अगले स्लाइड में डालिएगा। और मैं जुड़ा हूँ, और मैं तो बहुत रुचि लेता हूँ प्रोटेक्टेड में, और मुझे डॉक्टर प्रदीप काजरी से हमें भेजे और मैं तुरंत जुड़ गया, जबकि हम कहीं जाने वाले थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, कौल साहब को एक दिन और सुना था मैं, तो ज्ञान किसी से भी लिया जा सकता है। तो मैं बहुत रुचि लेता हूँ, मैं भी प्रोटेक्टेड का मतलब एक साइंटिस्ट हूँ, और AK सिंह नाम है। तो कभी भी कोई ऐसी ज़रूरत हो किसी किसान की या किसी भी तरह की डिस्कस की, तो ज़्यादा नहीं, कौल साहब की तरह नहीं, 10% जरूर शेयर कर सकता हूँ, 90% तो कौल साहब ही शेयर करेंगे। और थैंक टू ऑल सर। धन्यवाद सर। और मैं ये जरूर सीखा कि टीचर हो तो कौल साहब जैसा हो। ये तो मैं 2 बार उनका सुन के, बहुत अच्छे टीचर हैं, और शायद केमिस्ट्री के हैं, शायद मैं सलूट करता हूँ कि इतनी बढ़िया टीचिंग। मैंने PhD किया लेकिन कोई पढ़ाया नहीं। I am a learner. तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और थैंक यू सर, थैंक यू आप। मैं AK सिंह साहब को एंडोर्स करूंगा, इससे बढ़िया टीचर मैंने भी अपनी जिंदगी में कोई नहीं देखा। ठीक है, तो थैंक यू सर, आपने अपना वैल्यूएबल सजेशन शेयर किया। मैं INA की टीम को बोलूंगा कि किसी दिन आपके साथ भी एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए रिक्वेस्ट की जाए। यस, हम जुड़ना चाहते हैं आप लोगों के साथ, ज्ञान लेना और ज्ञान देना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। आई थिंक देयर इज नो मोर क्वेरीज लेफ्ट विद, we are overshot by 30 minutes. no, not an issue. You can continue for this also. We will, I am sure that our participants have learned so many new things from this webinar, and whatsoever now is the query with them may kindly be directly taken up with the Kol Sahab. Thank you one and all. Thank you very much. Hope to see you again very shortly on this series of Seeds for Future, the webinar series which is being organized by INA time and again. Thank you very much. Thank you one and all. Thank you. Thank you, sir.